सफलता के जो दरवाजे होते हैं, जैसे आपने करियर की सफलता की बात कही, सफलता के दरवाजे उसी के लिए खुलते हैं जो खटखटाने का प्रयास करता है। उनको से प्रयास ही नहीं करो। अगर आप प्रयास ही नहीं करोगे खटखटाने का तो दरवाजा अपने आप नहीं खुलेगा, दूसरे दरवाजे भी नहीं खुलेंगे। कोशिश तो प्रयास नहीं करना ही सबसे बड़ी असफलता है। People say, but they are very tough exam. बिल्कुल सर। They are not very easy. You require dedicated, proper planning and dedicated efforts, concerted efforts. If you want to clear NDA exam, 4 लाख 3.5 लाख बच्चे बैठ रहे हैं. Now the girls are also joining, so things have become more competitive. बिल्कुल SSB जरूर दीजिए लाइफ में एक बार. सर, मुझे भी ऐसे ही लग रहा था, मैं सर ओवर एज हो गई था। बिल्कुल सर, लाइफ में एक बार जरूर मैंने बिल्कुल. सर ये Amount of, I mean, you will know where do you stand. You will not get such a beautiful platform to assess your capabilities. Evaluation, every individual should go for SSB. Where is the problem? क्या आप ऐसा लगता है कि किसी भी मिशन को अकम्प्लिश करना है, कोई भी मिशन हो, लाइफ में बहुत सारे मिशन हो सकते हैं आपके, ये जरूरी है कि कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए. ये सबसे बड़ी घटना है आजकल की जनरेशन. कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए. These 3, 4, 5, 6 years are going to be very important time span in your life. Either you perform or you perish. सड़ जाओगे. ये 4 साल 5 साल जो है मेहनत करिए, कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए, कंसंट्रेटेड एफर्ट्स करिए, फोकस रखिए अपने मिशन पे, सफलता जरूर मिले. वायुसेना की ये शान, पीछे हो या करे कमान, बन खतरा कोई आए अगर, छाए नभ पर काल समान. In this podcast, a talk with Braveheart Season 2, saluting the Indian warriors, your host Priya Jhala welcomes to a seasoned Indian Air Force veteran who has put significantly outstanding contribution to nation building and contributed to shape the future leaders. Yes, I am talking about Air Vice Marshal Praveen Kumar, AVSM, VSM, who was commissioned into Aeronautical Engineering Mechanical stream of Indian Air Force in 1981. He is highly distinguished, experienced and qualified commissioned officer from Indian Air Force, retired in year 2016. A seasoned Air Force veteran, Air Vice Marshal Praveen Kumar has significantly contributed to the defense technology and self-reliance during his 36-year long service career. Post his retirement, he has dedicated himself to shape the future leaders by the way of mentoring and coaching aspiring youth to join the defense forces via crack, NDA, FCAT, CDS exams and SSB. He is presently associated with the Shivaji Rao Kadam Institute of Technology and Management, Rala Mandal, Indore, for the past almost 8 years as the Dean, Student Welfare and Chief Administrative Officer. Air Vice Marshal Praveen Kumar in past has held many important assignments in Indian Air Force, including Deputy SMSO at Maintenance Command and SMSO at Training Command, Bengaluru. He has worked on various fighter aircrafts and weapon systems and was specially trained on Mirage engine and MiG-29 aircraft. He also held the esteemed position of Assistant Chief of Air Staff Weapons in Indian Air Force for nearly 2 years before retirement. During his distinguished career in Indian Air Force, Air Vice Marshal Praveen Kumar earned numerous accolades with 2 particularly noteworthy awards. He was conferred with Vishisht Seva Medal by the Honorable President of India, late Dr. APJ Abdul Kalam, on January 2005 for his distinguished service to the nation of the highest order in peacetime. Subsequently, he was conferred with Ati Vishisht Seva Medal by the Honorable President of India, late Dr. Pranab Mukherjee, on January 2016 for his distinguished service to the nation of the exceptional order in the peacetime.
These prestigious peacetime honors were conferred on him in recognition of his outstanding contribution to the nation building and his exceptional service. His technical expertise combined with the vast exposure, strong analytical skills caught the attention of Indian Air Force leadership. As a result, he was selected for a special training in France, which further enhances his career and allowed him to contribute significantly to defense forces at a global level. During his assignment in France, Praveen Kumar was attained to SNICMA, a renewed aerospace engine manufacturer. There he was tasked with mastering the technology behind the Mirage 2000's M53P2 engine. In past, he had actively participated in LTTE operation at Sri Lanka and also during the famous Kargil conflict in year 1999. He has been a well-known and regular motivational and guest speaker, specially related to the personality development, orating and communication skill, success mantra, positive attitude and teaching attributes, etc. He is also involved in training, coaching, personality development, improvement of communication skill and mentoring of SSB crack preparation for the students, those who wants to make their career in defense services as a commissioned officer. We salute to the braveheart, seasoned Indian Air Force veteran, Air Vice Marshal Praveen Kumar, AVSM, VSM, for his outstanding contribution to nation building. Vishisht Seva Medal, Ati Vishisht Seva Medal. These two are very prestigious awards given by Indian Armed Force. ऐसे ही अवार्ड प्राप्त करने वाले एक ब्रेव हर्ट्स आज हमारे साथ हैं। मैं प्रिया झाला अपने पॉडकास्ट में उनका स्वागत करती हूँ। आज हमारे साथ हैं एयरफोर्स वेटरन एयर वाइस मार्शल प्रवीण कुमार जी। सर जय हिंद। और सर आई एम सुपर एक्साइटेड टू टॉक विद यू सर। मतलब आपने हमें सर समय दिया। अब बहुत बिजी लाइफ है आपकी, हम लोग जानते हैं, और उस बिजी लाइफ में से सब थोड़ा सा समय आपने हमारे लिए दिया, उसके लिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और सर आज मैं बहुत खुश हूँ कि आज आपके साथ बैठने का मौका मिला। कहीं ना कहीं एक प्लेस था जब हम साथ में थे, मिल नहीं पाए, लेकिन आज मौका मिला है आपसे मिलने का। तो सर थैंक यू वेरी मच। सैल्यूट एकेडमी की तरफ से, धर्मेंद्र सिंह झाला की तरफ से, और इतना प्रीसियस टाइम हमें देने की है सर। Thanks a lot, Madam Priya, for such candid praise and for so many good words. थैंक यू। First and foremost, I must thank Dharmendra and you. But all the way from Vijayanagar, 1 hour of drive, this traffic of Indore, you have come to the Rao to meet me, and it's also an opportunity for me to share my, whatever thought process I have with you and your students. So once again, you are welcome to my residence. थैंक यू वेरी मच। And this is the place where I also conduct some classes for the defense aspirants who are planning to prepare for NDA, ATCAT, CDS, and finally SSB. So once again, most welcome. And we start now. बिल्कुल भी, बस हम स्टार्ट कर दें सर। और सर जैसे कि आपने कई पॉडकास्ट हमारे देखे हैं, तो शुरुआत हम करेंगे सर आपकी लाइफ से, क्योंकि सर आपकी लाइफ जो आपने इतने साल इंडियन एयरफोर्स को दिए सर, जब लोग सुनेंगे ना तो शायद थोड़ा मोटिवेशन उनको मिले, क्योंकि आप जानते हैं आपके पास भी और हमारे पास भी बहुत एस्पिरेंट्स आते हैं जो कहीं ना कहीं आर्म फोर्सेस में जाना चाहते हैं। तो सर एक छोटी सी स्टोरी आपकी लाइफ की, कम समय में सर। Yes. देखिए, I did my engineering, essentially in mechanical engineering from Govindaram Saxaria Institute of Technology, Indore, and thereafter from MITS Gwalior. And once I graduated, and then I decided to go for MTech. At that point of time, MTech was a very high qualification. So I did MTech from Roorkee, which is now IIT Roorkee. And again, I got an opportunity at Roorkee itself to continue for MBA. Okay. So this is
what was my academic life. And thereafter, fortunate enough that I happened to meet Air Force people. They came there for university selection, campus selection. They came to your college. They came to university. And उस समय ये FK2 सीरीज का एग्जाम नहीं होता. नहीं होता. So they conducted a small written test in the auditorium. Okay. And I was fortunate again that I cleared that written test, and they invited up 12 of us to appear for the SSB at Dehradun. So that is how I got into this, and let me be very honest, I was neither prepared, nor was ready, nor was very knowledgeable about what actually Indian Air Force is. I was only very excited to see the presentation, what they have given it to us during that campus selection. उसमें वो स्पोर्ट्स दिखा रहे थे, टेबल टेनिस, बिलियर्ड्स एंड घुड़सवारी, सो मेनी थिंग्स. सो वो एक तरह से मेरे में एक डायनामिज्म और एक जोश भराया था. I said, yeah, I got little motivated because from beginning I was very keen sports person and was involved in the extracurricular activities. So I said, okay, appears to be a good service, good career, professionally as well as financially. So I appeared for SSB exam. And again, I was not, not ready for any competition. I didn't know what exactly is the SSB exam. Till I reached SSB Dehradun, when they gave a briefing, that is the time only I came to know that yes, I have to stay here for 5 days. And the exam will consist of various stages, which will include intelligence tests, psyche tests, the group testing, aptitude tests, so many things. Cleared the SSB, went for my medical, joined Indian Air Force in 1981 as a commissioned officer in Aeronautical Engineering Mechanical Branch. Okay. So, when you opt for the mechanical engineering branches, your initial training is at AFTC, Bangalore, Air Force Technical College. So, I am converted from mechanical engineering to aeronautical engineering at AFTC, Bangalore. 1.5 years altogether at Bangalore. And then commission. So 81 commission, and precisely I have put in around 36 years of service in Indian Air Force, retired in 2016. And since Indore is my hometown, I have decided to settle down at Indore. And immediately after retirement, as I said, ideal mind is a devil's mind. So I decided to continue doing some job, engaging myself with some activities. And the best thing was, to deal with youngsters. So, I happened to join Shivaji Rao Kadam Institute of Technology and Science as a dean in 2016, and past 8 years I have been working there as a dean cum chief administrative officer. So this is what, in short, is my journey. But in Air Force, I started my career with Ajit Net and Hunter aircraft as a maintenance engineer. And then I was selected and was sent to Russia for training on MiG-29 when MiG-29s were inducted in Indian Air Force. So I got trained in Russia. And then thereafter, I continued on MiG-29 for almost 5-7 years. Again, I was selected to go abroad for Mirage engine training at Paris. But for a very long duration, I was there at SNECMA, France. Got trained at France and then come back to India to set up the depot level repair facilities and overall facilities at Air Force Station Kanpur. The depot which was assigned this job was 4BRD Kanpur. So वहाँ पर मैंने 5-6 साल पूरा सेटअप किया ओवरऑल का along with my team. We were about 5-6 officers and 40 airmen. We were the pioneer, basic, and we developed the technique of overall, and which has resulted in saving of huge amount of money. You can call it as self-reliance, what we say, Make in India and Atmanirbhar India. It was transfer of technology from France. We adopted it and validated it in no time, within 5 years. And we started doing overall of Mirage engine, which is M53P2 engine in India itself. Okay. Once I completed this tenure at 4BRD, I was picked up, I don't know how come I was picked up to work as a HR manager of Indian Air Force Technical Branch. So I joined P staff in Air Force. You know it very well, madam.
as we call it as a P-staff. And personal staff mein, I was director personnel for engineering branches. Again, I continued there for 6-7 years. And this is the time, that was the period of 5-6 years where I started learning the, mantras of human resource management. And also the training institutes, coaching institutes, SSBs. And that developed that interest in, teaching and academic, related activities. So once I completed my tenure at P-staff, I was picked up and made commanding officer of the same depot where I was involved as a wing commander. So I became group captain and I commanded 4 BRD Kanpur for 2.5 years. Picked up my rank as a Air Commodore and was shifted to Allahabad Central Air Command as a CNJO. Again shifted to SWAC, Gandhinagar, again technical. And this is the time I became Air Commodore. And first I was posted as AOC Jalari. You can call it, it's a very large institute, ground training institute of, I should say, Asia, where almost 7,000, 8,000 airmen and officers are being trained on various ground duty related activities of Indian Air Force. And I commanded that. So you can call me as a academic head, come the air officer commanding of that institute. It's a huge one. The total strength is around 12,000 people, out of which around 7,000, 8,000 are trainees. So that again got, I got into that mechanism of academics, how to prepare yourself. There I used to take some classes also. After completion of my tenure at Jalari, as a AOC, I was shifted and as a Air Vice Marshal to Maintenance Command, Nagpur, which is dealing with all maintenance related activities of Indian Air Force of various type of weapon platforms, and also looking after the progress of various depots. So I served there at Maintenance Command Nagpur for 2 years. Then I shifted and a very coveted assignment, very powerful assignment of Senior Maintenance Staff Officer, we call it SMSO, of Training Command at Bangalore. And Training Command is responsible for looking after various type of training activities which are conducted in Indian Air Force, which include flying training and ground training. And I continued there for 2.5 years. And again, I got shipped there and I became Assistant Chief of Air Staff and was given the responsibility of looking after all the weapons. This was in 2014. And that is the time the present Prime Minister Narendra Modi took over and he started, getting into this fast progress, fast procurement, make in India, self-help, all these type of programs. So I was very actively involved in various procurements of the weapon systems, what you have seen, be using Sindoor, Operation Sindoor. And that was the time he started RFP and various other technical activities. So as a Assistant Chief of Air Staff, I worked at Air Headquarters Vayu Paryavaran Bhavan for 2 years and then I retired in 2016. So journey has been very long and during that period I had the opportunity of working on various type of aircrafts. I forgot to tell you, in between I was also involved in induction of Hawk aircraft at Air Force Station Bidap as a chief engineer. So operated Hunter aircraft, MiG-29s, Mirage aircraft, Kiran aircraft, Hawk aircraft, so many things and so many type of weapon platforms. Plus around 2007-8, I was also selected for doing another MTech from Air Force. So I did one more MTech while being in Air Force at Institute of Armament Technology, which is called as a DIAT nowadays. Okay, so that is at Pune, near Khalabasra. So I did my second MTech and Air Armament Staff course at IAT Pune, which is equivalent to DSSC. DSSC is much more, strategy oriented. But this was a technical staff college course where I was awarded with the PTSC. And other activities included working on various weapon systems, armament systems, which included UAVs, drones, missiles, bombs, rockets, all the inventory, NBC, what you can think of. Because of my advanced air armament staff course at Pune,
I was treated as a armament or weapon specialist because I did MTech in armament. So, and that is why I became assistant chief of air staff weapons. Okay. So my specialization generally was related to either armament or teaching, training. So उसी वजह से फिर यहाँ आके रिटायरमेंट के बाद lot of people they came and they spoke to me, and I also have done some courses on counseling, life counseling and psyche test. जी सर. So a lot of youngsters in and around, they know that one air marshal, retired air marshal, is staying in our colony. So they used to come and approach me, asking for various, various tips, how to prepare for SSB, conduct FCAT and CDS exam. And one more thing I want to add is since 2015 onwards, I am also involved in UPSC interview activity. So various posts of UPSC, I've been called as a advisor in the advisor panel for taking interviews. Depending upon what type of vacancies they feel that I am comfortable and I am specialized. So with this background of specialization in counseling, psyche and teaching, training, then HR functioning, multifaceted, helped me in preparing the students for SSB especially. And the module which I am conducting here at Rao is primarily oriented to prepare individual to crack the SSB exam. As you know, SSB is a test of personality, followed by attitude, resource management, leadership. So they select best out of the rest. If I don't concentrate on individual's personality, then how do I expect him to clear the SSB exam? बिल्कुल सर, इसीलिए आपने लिमिटेड सीट्स रखी हैं. Limited because that way, I'm sorry, because I can't help it. It's not that infrastructure is not there, but I want to concentrate on each student, each individual, to prepare him for personality development and attitude. And then it's a 3.5 months of module where 4 to 5 hours of classes I'm taking on Saturday, Sunday. 5 days, 6 days I go to the college, work as a dean. Saturday, Sunday I'm involved in these activities, so time flies, keeping myself busy in many things. सर, तो सर इस तरीके से आप पूरा मतलब अभी भी बहुत ज़्यादा बिजी हैं. तो सर इस बिजी शेड्यूल में हम फैमिली को कैसे टाइम दे पाते ओह, फैमिली, सर? थोड़ा उनके बारे में बताइए. मैं ये दुखती डर पे आप हाथ रख रही हैं. को सर रखना हमारे बिल्कुल है, वो है. They have a lot of complaint. I go and play golf. I am also a very good cricket player, but अभी थोड़ा कम हो गया है. जी Keep myself engaged with various students and counseling activities. As far as family is concerned, महीने में 1-2 बार अच्छी जगह घुमा के ले आओ, अच्छा खाना खिला के ले आओ, थोड़ा ड्रिंक करवा दो, बस she is happy. अच्छा, अभी मैम देखेगी तो गुस्सा करे. Idea दे रहे हैं ना. time management is one thing where I feel that there is no shortage of time. You must know how to actually divide your priorities. सर ये एक्चुअली जब हम लोग बच्चों को पढ़ाते हैं ना, तो बच्चे हमसे आके बोलते हैं मैम इतने सब्जेक्ट है, हम बहुत कंफ्यूज हो रहे हैं, मैथ्स पढ़े, फिजिक्स पढ़े. तो हम यही बोलते हैं कि टाइम बेटा सभी के पास उतना ही होता है ना. मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री भी उतने ही टाइम में इतने सारे काम कर रहे हैं, तो आपको तो सिर्फ पढ़ना है. Absolutely. और साथ साथ पढ़ना इज द इजीएस्ट टास्क, मैं ऐसा मानती हूँ स्टूडेंट लाइफ. It's a kind time, so है ना. लगता है कई बार, but it is always good to be occupied. The ideal mind is a devil's mind. Physically fit होना है और mentally alert and endurance बढ़ानी है, तो आपको अपने आप को engage रखना पड़ेगा. By the way, I am approaching 67 years. सब 67 years में 5 घंटे खड़े होके पढ़ाना. तब है जो खड़े ही नहीं हो पाते सर 67 ईयर्स. आपको बताया ना, नहीं तो अर्थराइटिस और वो सारी प्रॉब्लम है. और I give a lot of credit to my training जी सर, and Indian Air Force. बिल्कुल सर. जो डिसिप्लिन लाइफ सर, Discipline, also physical fitness, and the amount of effort which is taken by the organization in improving the physical and mental endurance of their employees. तो वो है, वो आप देखिए, कोई भी धर्मेंद्र was with me earlier, he is equally fit. So that physical fitness part, the credit goes to the organization. ऑर्गेनाइजेशन बिल्कुल नहीं. 24/7 you are working.
व्हेन आई वाज इन फ्लाइंग स्क्वाड्रन, सवेरे 4 बजे उठ के जाना पड़ता था, 5:30 बजे फ्लाइंग शुरू हो जाती थी। रात में पता नहीं है कब फ्लाइंग बंद होगी, नाइट फ्लाइंग हो रही है, तो रात भर टारमेक पे बैठे रहते थे हम लोग। सो 24/7, सो माय फैमिली इज़ यूज्ड टू माय बिजी शेड्यूल। कम बैक आएँगे, जल्दी-जल्दी खाना खाएँगे, ओवरऑल उतारेंगे, फिर दूसरा पहनेंगे और वापस चले जाएँगे स्क्वाड्रन। तो ये रूटीन चलता रहता है। तो वो एडजस्टमेंट वो एडजस्टमेंट हो जाता है और वो इट्स अ माइंडसेट। सही है सर। आपका परसेप्शन है कि मेरे पास समय की कमी है। समय की कमी कभी-कभी लगती है, बट फिर भी उसको एडजस्ट मैनेज हो जाता है। तो सर आप ये जो इवनिंग वाला आपका सैटरडे संडेज दे रहे हैं स्टूडेंट्स Sunday it is in the morning hours. ओनली, Sunday because I don't go to the college. Sunday the classes are from 10 o'clock till 3:30, 4 o'clock. Saturday it is in the evening hours from 4:30 because I come back from college 4 o'clock, 4:30 I start the class and continues up to 9 o'clock. And sometimes during weekdays, because if the batch is lagging or there is some issue, राखी है, दिवाली है, सैटरडे को, तो वो फिर चेंज करना पड़ता है। अदरवाइज से 3.5 months, तो जस्ट इमेजिन अराउंड 15, एक महीने में 8 बार, 16 बार 2 महीने में, इसी तरह से 24 टाइम्स प्लस अराउंड 30 टाइम्स दे हैव टू कम हियर। 30 multiplied by 5 hours, around 150 hours submarine, and the results are very good, ma'am. ठीक है सर। तो यही पूछना चाह रही थी कि दिस टाइम ड्यूरेशन इज इनफ फॉर प्रिपरेशन सर, और वी नीड सम एक्स्ट्रा टाइम और एक्स्ट्रा एफर्ट्स? The proof of this thing is in the selections, and you have seen the library. इन सेलेक्ट, I mean, I don't basically, I'm not doing it commercially. I don't charge any coaching fees. यस यस, When I'm not doing it commercially, no advertisement, no publicity, no pamphlet, कुछ नहीं. Despite that, almost 23 individuals have commissioned in last 2.5 years, passed out from here, and my batch strength is around 40. और खत्म होते होते वो 40 की जगह 35 रह जाते हैं, 3-4 छोड़ देते हैं, डर जाते हैं, या वो दे आर लैक ऑफ टाइम और या जो डिस्टेंस प्रॉब्लम पॉसिबली। सर। सो द प्रूफ ऑफ द पुडिंग इज कि वो सामने है, तो रिजल्ट्स अच्छे हैं। और रिजल्ट्स इसलिए अच्छे हैं बिकॉज माय कंसंट्रेशन इज ऑन पर्सनालिटी डेवलपमेंट। सर एक क्वेश्चन है मेरा सर, अगर सिंपल लैंग्वेज में समझाना है किसी को, बहुत सिंपल, कि व्हाट इज पर्सनालिटी डेवलपमेंट, तो आप कैसे समझाते हैं या आपका तरीका क्या होता है? No. Personality is a sum of all those attributes. You interact in a group, the way you conduct yourself, the way you communicate, the way you orate, the way you walk, the way you talk, everything. So it encompasses many things. And it depends upon environment, it depends upon heredity, it depends upon situation, it depends upon your education qualification, it depends upon your, graduation, college, वगैरह वगैरह. So it encompasses so many things. So भाई आप घर में संस्कार सिखा सकते हैं मैडम, but when it comes to personality, it is I feel proper mentoring, या फिर घर में कुछ ऐसे एजुकेटेड लोग हैं जो इस चीज का ध्यान रखते हैं, या फिर कॉलेज लेवल पर. सो सर मतलब पता नहीं कि प्रोसेस है। it's a process. It takes a lot of time. It is not possible. And there are people. आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ. आपने इतने कितने कोचिंग इंस्टीट्यूट देखे होंगे जहाँ बच्चा एक बार कोचिंग करने के बाद वापस आता है 6 महीने बाद, सर मेरे को फिर से करनी. आप मुझे नाम बताइए भारत में. यहाँ पर every course there are 7 to 10 individuals who are doing repeat course. That thing is called as a repeat course. They finish their course of 3.5 महीना. They come back after 6 months. He said, I want to do it again. Why? Because personality development, as I said, it takes time. And it is affected by many things. Situation. घर में कुछ प्रॉब्लम है, सिस्टर का तलाक हो गया है, माता पिता झगड़ते हैं. So many factors are there which affects your perception, your nazariya, your outlook, your thought process. So, and that these factors all together combine, the resultant is personality. सर जैसा अभी आपने बोला कि ऐसे जो ये प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस होती है घर में, है ना,
तो वहाँ से बच्चा अपने आप को कैसे बाहर निकाले इफ ही इज प्रिपेयरिंग फॉर सम एग्जाम लाइक एसएसबी? very interesting questions and very difficult answer. Firstly, it's not possible immediately because individual has to understand. He has to set his target and the focus should be mission accomplishment. If you get distracted by these things which are small in matter, अगर बहुत बड़ी बात हो गई तो आप कुछ नहीं कर सकते. But छोटी छोटी things से if you are affected and you lose concentration, then आपको मछली की आँख पे तीर कैसे लगेगा? So mission accomplishment should be the first thing in the mind. So ये जो प्रॉब्लम्स घर में आती है ना, उसका तरीका खुद को संभालना है. हाँ सर, आप उसके लिए कोई कोचिंग, कोई मेंटरिंग कुछ नहीं कर सकते. इंडिविजुअल हैज टू अंडरस्टैंड कि जो हो गया सो हो गया, जो आगे होगा वो अच्छा होगा. और एक बात जो मैं आपने पूछी उसके बारे में ये बोलना चाहता हूँ कि सफलता के जो दरवाजे होते हैं, जैसे आपने करियर की सफलता की बात कही, सफलता के दरवाजे उसी के लिए खुलते हैं जो खटखटाने का प्रयास करता है. उनको सर प्रयास ही नहीं करो. अगर आप प्रयास ही नहीं करोगे खटखटाने का तो दरवाजा अपने आप नहीं खुलेगा, दूसरे दरवाजे भी नहीं खुलेंगे. कोशिश तो प्रयास नहीं करना ही सबसे बड़ी असफलता है. सो दैट इज व्हाट इज इंडिविजुअल हैज टू अंडरस्टैंड. एंड तो ये जो टीनेजर्स हैं, एडोलेसेंट्स हैं, इनका जो माइंड है ये काफ़ी अफेक्टेड होता है और इसके लिए बहुत ज़रूरी है एक प्रॉपर मेंटरिंग अंडर ए एक्सपीरियंस मेंटर. अनफॉर्चुनेटली हमारे कॉलेज में जो हमारी एजुकेशन सिस्टम है, वी पे लॉट ऑफ अटेंशन ऑन पढ़ो पढ़ो पढ़ो, नंबर नंबर नंबर, पास, ये वो, ग्रेडिंग. आई एग्री, you need technical expertise, academic brilliance, some level is required. But if you actually go through the survey, go through various the theses, 85% of people, their success in their career and life is because of their personality and followed by attitude. 15% is by technical expertise. 85% सफलता आपको केवल पर्सनालिटी से और एटीट्यूड से मिलती है. इट्स ए फैक्ट. स्टडी वाज कैरिड आउट इन हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, उनके रिजल्ट है ये. 15% इज योर टेक्निकल कॉम्पिटेंस लेवल. उतना चाहिए, ग्रेजुएशन करना है. कम से कम इतना तो 85% आपका. और हमारे यहाँ शिक्षा में जो हमारा एजुकेशनल मॉडल है, 8वीं 9वीं ऑनवर्ड्स, we pay 85% attention to the education, score good marks, and we give only 15% attention to the overall development, soft skills, personality development. सही. उल्टा चल. तो दैट इज वेयर जो आपने एक सक्सेस रेट की बात बताई है, तो दिस मॉड्यूल व्हाट आई एम डूइंग इज ओनली फॉर पीपल हु आर एस्पायरिंग टू जॉइन डिफेंस फोर्सेस, कोस्ट गार्ड. बट it is not possible for everybody to do it. SSB is a very tough task. It's a unique thing सिलेक्शन के लिए. लेकिन इतना है कि वो 40 के अंदर अगर 4 सेलेक्ट हो रहे हैं SSB के थ्रू, रिमेनिंग 36 आर डूइंग वेरी वेल इन देयर फर्स्ट इंटरव्यू बिकॉज दे हैव अंडरस्टूड द इंपॉर्टेंस ऑफ सॉफ्ट स्किल्स. नो, बोथ हैव टू ट्रैवल टुगेदर. इंटेलिजेंस लेवल कह लीजिए या आपका टेक्निकल कॉम्पिटेंस कह लीजिए एंड सॉफ्ट स्किल्स. You are very good in research, you are very innovative, you are very analytical, but you are unable to communicate. Then how do you expect him to work as a leader? So personality development is a need of the hour. I mean, I personally feel that veterans and other institutes, coaching institutes, they must give additional attention to the overall development and nurturing of the young students. बिकॉज आप थोड़ा भी उन पर मेहनत करेंगे, आजकल की जनरेशन इनका अपटेक बहुत ज़बरदस्त है. दे आर वेरी फास्ट, टेक्निकली दे आर एक्सट्रीमली साउंड. ओनली थिंग दे आर नॉट गिवन द प्रॉपर टॉर्च लाइट. उनको रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है. सही है सर. तो अगर ये एक मैसेज है कि अगर टेक्निकल एजुकेशनल सिस्टम में पर्सनालिटी डेवलपमेंट में थोड़ा ध्यान दिया जाएगा. आप वाइस लेडी श्री राम कॉलेज,
daily college. Why इनके students are they are अलग से स्पेशल दिखाई देते हैं? आप खड़ा कर दीजिए। सर उनके वहाँ पे जो आप बोल रहे हैं ना एकेडमिक्स तो है ही, वो को करिकुलम में इतने इन्वॉल्व मतलब एक मुझे याद नहीं आ रहा सर, सत्य साई जो है ना, वैसे सत्य साई कॉलेज है सर बेंगलुरु में, तो वहाँ से मेरे पास एक टीचर थे हमारे, वो आए थे, तो सर वो मुझे बता रहे थे कि हम कॉलेज में जितना पढ़ते हैं ना, उतना हम म्यूजिक भी सुनते हैं, उतना हम खेलते भी हैं, उतना हम दूसरी एक्टिविटीज भी करते हैं। Another point I want to highlight here. It's the group dynamics which matters when it comes to selection in SSB. That is another important factor besides your personality attributes, besides your attitude. Third is group task, group dynamism, compatibility, group compatibility. So, अगर आप कॉलेज नहीं जाएंगे, पढ़ेंगे नहीं, सब लोगों से नहीं मिलेंगे, पर्सनालिटी डेवलप तो घर में उतनी नहीं हो पाएगी, तो आपका ये जो ग्रुप डायनामिक्स वाला जो कहानी है ना, ये भी पीछे रह जाए। हाँ सर, एक्चुअली अभी एक प्रोसेस देखने को मिल रहा है, शायद आप भी जानते हो उसको, डमी बोल। हाँ सर, तो डमी में बच्चे क्या कर रहे हैं सर, स्पेशली एनडी एस्पिरेंट्स की दे जॉइन सम कोचिंग क्लासेस फॉर फुल डे, ऑल्दो दे आर नॉट टीचिंग देम फुल डे, और वो फुल डे बोलते हैं, और मुश्किल से वो फिजिकल भी नहीं कर रहे हैं कुछ, है ना, पर वो डमी कर रहे हैं सर। तो मेरा ऐसा मानना है, मतलब हम लोगों के पास वो आते हैं तो सर हमको सजेस्ट करते हैं, अरे स्कूल जाओ ना, ये स्कूल लाइफ जो है तुम्हारी, जो तुम फ्रेंड्स के साथ सीखोगे, एक जो आपने बोला सर लीडरशिप क्वालिटी है ना, कुछ गेम्स है या कुछ एक्टिविटी है सर, उनसे बिल्कुल दूर हो जाएंगे, और वो मोबाइल सर, अभी तो वो सोशल मीडिया का बहुत ज्यादा इम्पैक्ट है। I fully agree, and I know Salute Academy is doing a great job. But the point is, ये जो डमी या ब्रेक ले लेना, it's not good. To be very honest, candidly, it is not delivering the expected results. बिल्कुल आप परसेंटेज देख लीजिए उन बच्चों का सक्सेस रेट के हिसाब से। सर, डमी वाले पढ़ते हैं ना, तो सर वो 12th ही पास नहीं कर पा रहे हैं। मैं यही बता रहा हूँ, इसलिए बहुत जरूरी है कि अदरवाइज यू स्टॉप दिस एजुकेशन सिस्टम यार। लेट अस हैव ऑनलाइन एजुकेशन, घर में बैठ के पढ़ो ना, फिर क्या। आई हैव सीन दैट जनरेशन व्हिच पास्ड आउट आफ्टर कोरोना, सर 10th and 12th। बिल्कुल सर। बच्चे मेरे कॉलेज में इंजीनियरिंग करने आए थे, आई एम सॉरी टू से, ना पूछना नहीं आता उनको, दे डोंट नो हाउ टू टॉक, द मैनर्स, द एटिकेट्स, द नॉर्म्स, basic civic sense, self discipline missing, because they have not seen schooling in 10th, 11th and 12th। बंद था कॉलेज, स्कूल बंद था, 10वीं 11वीं 12वीं उन्होंने घर पे करी कोरोना के टाइम, और सीधा कॉलेज में आ गए। So all those people are not able to now progress properly because of this factor of group compatibility. So मेरा to your students, especially your academy, please do not opt for this dully. You are spending lot of money unnecessarily, बिल्कुल and you are at home, क्या करोगे, कितनी देर पढ़ोगे? After all, the brain requires time to comprehend, to rejuvenate, to understand, and to retain, and finally to reproduce. घर में बैठ के 2 घंटा 4 घंटा 5 घंटा पढ़ लिए, then what? Social media, internet, YouTube. So it is good you go to the school, you go to the college, ठीक है, if you are finding unable to manage the time, 2 दिन मत जाओ स्कूल यार, अटेंडेंस मत दो, पढ़ो घर आके, बट आप पूरा ऑफ मत लीजिए। देयर आर सम कोचिंग इंस्टीट्यूट्स इन इंदौर की वो 10वीं 11वीं भी कराते हैं और साथ में डमी सर, रमी एनडीए भी, ये भी वो सब कर। सर डमी स्टूडेंट्स आर राइट आल्सो सर, उनको आप लिखो क्या ना, इनकी लो सेंटेंस लिख के बता, उनको आता ही नहीं सर लिखना। एनडीए, सीडीएस and FCAT, people say, but they are very tough exam. बिल्कुल सर। They are not very easy. You require dedicated, proper planning and dedicated efforts, concerted efforts, if you want to clear NDA exam. 4 लाख 3.5 लाख बच्चे बैठ रहे हैं, now the girls are also joining, so things have become more competitive. बिल्कुल So सबसे बड़ी चीज़ है कि बच्चे को 10वीं 11वीं से NDA एग्जाम की तैयारी शुरू कर रही। पहला मेरा संदेश, जो मेरे पास बच्चे आते हैं, मैं 11वीं में लेता हूँ, 11वीं के सेकंड हाफ में उनको लेता हूँ, क्योंकि 12th में आके उनके पास में बहुत ज़्यादा रास्ते दिखाए जाते हैं। जेई भी दे दो, गेट भी दे दो, और पता नहीं क्या क्या है, और वो एनडीए भी दे दो, फिर 12वीं का स्कोर भी आपको अच्छा लाना है। इफ़ यू वांट 10+2 एंट्री फिजिक्स केमिस्ट्री में,
if you want to join defense forces after 10 plus 2, you should have minimum 80% marks. Then only you will be given SSB call letter. तो उनके ऊपर इतना लोड हो जाता है कि वो ना 12th अच्छा कर पाते हैं, ना जेई के अच्छे नंबर आते हैं, ना एनडीए का एग्जाम अच्छा दे पाते हैं. तो 11वीं इज द राइट टाइम फॉर देम टू ज्वाइन सम प्रॉपर मेंटरिंग, प्रिपेयर फॉर रिटन एग्जाम, कोचिंग वगैरह जो करना चाहें, स्पेशली पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड एवरीथिंग स्किल्स एनहांसमेंट. बिकॉज दैट इज वन ऑफ द थिंग. आई मीन इंग्लिश सीखोगे तो इंग्लिश बोलोगे तो इंग्लिश सुधरेगी, हिंदी बोलोगे तो हिंदी सुधरेगी. और कहीं ना कहीं आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि इंग्लिश इज ए मीडियम. एसएसबी में ठीक है थोड़ा बहुत हिंदी चलती है, बट फाइनली यू हैव टू गिव ए टॉक इन इंग्लिश. यू हैव टू गिव रिटन एग्जाम, वैट, टैक, एसआरटी इन इंग्लिश. तो थोड़ा सा पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे 11वीं क्लास से अगर बच्चे को लगा दिया जाए, विथ ए फोकस के एनडीए का एग्जाम करिए, 11वीं में उसके पास में 2 महीने का ब्रेक मिलेगा, एंड देयर आफ्टर ही शुड कंसंट्रेट ऑन स्कोरिंग गुड मार्क्स इन 12th. टाइम लग जाए. And then he should have a backup option, very clear. तो मैं इस चीज़ का मेरा पर्सनल ओपिनियन है, आई मे बी रॉन्ग, दैट ये डमी सिस्टम इज ईटिंग अवे एक्चुअली. ये बच्चों को कमर्शियल लोग ये लोग इस तरह की हरकतें कर रहे हैं और बच्चों का पूरा करियर सत्यानाश कर रहे हैं. आई मीन आई एम नॉट इन फेवर ऑफ इट. बच्चा शुड नॉट टेक अ सिंगल डे ब्रेक. Single day break. He should meet people. He should interact with people. That's what I said. Personality, heredity, situation, environment, company. ये बहुत सारे इसके ingredients हैं जो कि पर्सनालिटी को डेवलप करते हैं. बैठे बैठे फोन में थोड़ी डेवलपमेंट होगा सर. आजकल तो ऑनलाइन क्लासेस भी हो रहे. वो मैंने ऑनलाइन की अपनी एक लिमिटेशंस हैं. A lot of people they come to me and Dharmendra is doing something online about CDS and FCAT का. बट स्टिल ऑनलाइन का मेरा अपना एक सोच है. व्हेन इट कम्स टू एनडीए एसएसबी एग्जाम, ऑनलाइन इज नॉट गोइंग टू गिव यू द डिजायर्ड रिजल्ट्स. लेट मी एब्सोल्युटली बी क्लियर. पीरियड. इट हैज टू बी फेस टू फेस इंटरेक्शन with the candidate who is planning to appear for SSB, face to face and in a group. May not be homogeneous group. Interact in the group, communicate in the group, and let group understand your psychology. Let the team spirit, team dynamism, group compatibility, group acceptability, all these things will come when you are sitting in a class together. ऑनलाइन में आप रट लेंगे तो क्या होता है, जब आप एसएसबी में, मुझे थोड़ा सा आइडिया है, जब एसएसबी में जाते हैं इतने सारे यूट्यूब के चैनल, इतने सारे ऑनलाइन इंटरनेट वगैरह आ गए हैं, इतनी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स आ गई हैं भारतवर्ष में, और रटे रटा यानी यहाँ तक कि कॉमा, फुल स्टॉप, नेम ऑफ योर मेन कैरेक्टर भी वही होगा. और बिल्कुल 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 जैसे कॉपी करके आते हैं ना, नकल करके, वो वैसे की वैसी स्टोरी लिखकर आ जाएंगी. वर्ड एसोसिएशन टेस्ट, संबंध जोड़ना, जो उसमें यूट्यूब में रटाया है ना, वो ऐसा कैसा लिखकर आ जाएंगी वहां पर. तो वो क्या इतने इतने घुटे हुए वो जीटीओज हैं, दे आर वेरी वेल ट्रेन, हाईली एक्सपीरियंस, स्पेशली ट्रेन एसएसबी पीपल. उनको एकदम समझ पे आ जाता कि ये कमांडर प्रवीण कुमार ने किताब लिखी थी, उसका रट के आए. ये उनका इंटरनेट है, वो यूट्यूब में भी देख रहा हूँ. यहाँ मेरी क्लास में होता है कि जैसे मैं कभी टेस्ट लेता हूँ तो फट से वही चीज मैं कहता, अच्छा वो वहां से देखा है. बोले हाँ सर. दे वांट ऑनेस्ट एंड नेचुरल रिप्लाई. जहां आपने इधर से कट उधर से कॉपी करने की कोशिश करी, देन इट विल बी अ कॉन्फ्लिक्टिंग रिस्पॉन्स. कॉन्फ्लिक्टिंग किस लिए? यू हैव 3, 4, 5 different type of psychological test, where somewhere you have to write the story, somewhere you have to do the word association. In some cases, you have to react on a situation reaction. Then you have to self-describe yourself. Now, जो पिक्चर परसेप्शन है वो तो कहीं से पढ़ के आपने लिखा है, जो वर्ड एसोसिएशन है वो कहीं से सुन के लिखा है, जो सिचुएशन रिएक्शन में आप कुछ और दिखा रहे हैं अपनी पर्सनालिटी, तो कॉन्फ्लिक्टिंग रिस्पॉन्स है ही नहीं. सो कॉन्फ्लिक्टिंग पर्सनालिटी इज नॉट एक्सेप्टेबल टू मी. आई वांट ऑनेस्ट. जो मैं हूं वो पर्सोना जो है उतार दीजिए, जो मैं हूं वो सामने आंदी.
Yes, every individual will have some weak points. बिल्कुल But अगर ये केवल behavioral है, deep rooted नहीं है, I will select it. Because I know during training, I will improve. Let us say some people are weak in English. उनको दिख रहा है कि weak in English है, but that individual has got a, right perception. His approach, attitude is very good, and he is best suited for commissioning in Indian Air Force or Army. He will be selected. He may not be very good in English. Same thing happened with me. And you said some story. If you permit, if you have time, I will give you that was any story of my. जय सर एक्चुअली मैं थोड़ा सा क्वेश्चन रखना चाहूंगी ये क्वेश्चन बहुत सारे स्टूडेंट्स ने पूछा है मुझसे एक्चुअली सर मेरी क्लास में कुछ स्टूडेंट्स हैं वो बहुत अच्छे हैं एकेडमिक्स में अच्छे हैं दे आर गुड इन एवरीथिंग बस थोड़ा सा उनका स्पोकन वीक है तो सर मैं यही पूछना चाह रही थी कि अगर कोई स्टूडेंट वहाँ जाता है ना उसका सब कुछ सही है और थोड़ा सा अगर अंग्रेजी में या भाषा का उसका थोड़ा सा अगर प्रॉब्लम है तो क्या एसएसबी उसको सिलेक्ट करेगी वैसे तो ये आंसर एसएसबी वालों को देना चाहिए, but since I am सर आप very knowledgeable on that, before I answer, let me tell you what has happened with me. जी As I said, I was doing MBA, and we were forced to go into that auditorium. जाइए वो मास्टर ने बोला जाके बैठ जाओ. क्या है साहब, बोले इंडियन एयरफोर्स वाले आए, दे आर गिविंग सम प्रेजेंटेशन, और वो उस समय वो वाले प्रोजेक्टर होते थे OHP. So when I saw the presentation, I was very impressed. बड़ी अच्छी चीज़ है ये तो. And they conducted a written exam. I got selected. They said you come to Dehradun for SSB. I was extremely good when it comes to, scoring good marks in 10th, 11th, 12th. Also in my engineering. Technically, I will not, मेरे अपने मुंह से नहीं बोलूँगा, but technically exceptional. Unfortunately, I was not very good as far as auditing skills are concerned. That background, because we are from Hindi background, घर में हिंदी बोली जाती थी, and we are from MP इंदौर, तो probably मेरे पास वो अपॉर्चुनिटी नहीं थी. हम लोग DAV स्कूल टाइप के थे. कॉलेज भी हमारा इतना ज़्यादा उस समय इंग्लिश का प्रभाव नहीं था. हम डेंसिटी को घनत्व बोलते थे, गुरुत्वाकर्षण को, जैसे पूरी फोर्स को गुरुत्वाकर्षण बोलते थे. सर पूरा हिंदी मीडियम नहीं, हिंदी नहीं, इंग्लिश में था, बट मतलब आपको इतना बात तो पता है सब बहुत पढ़ा से मास के पार और पात्रा और जैसे ये चीज़ें. सो जब मेरा हम लोग 12 लोग इकट्ठे हुए थे रुड़की से, और 12 को भेजा था, तो उसमें देयर वाज अनदर कैरेक्टर हु वाज विद मी इन एमटेक प्रोडक्शन. तो वी वर कलीग्स. तो बोथ ऑफ अस वे वेरी हैप्पी, एंड आई टोल्ड हिम, यार मुझे तो यार डर लगा है. सो क्या बोलूँगा, कैसे बोलूँगा, तो बोला नहीं चलते हैं यार, मैं बोलूँगा तो तू गर्दन उड़ाना, तू बोलेगा तो मैं गर्दन हिलाऊंगा, बस बात खत्म. कुछ तो बता ही नहीं था ऐसे होता है कि सो वहाँ पर उस समय लेक्चर एक होता था, अभी भी होता है. अभी भी होता है सर मिक्स Card was given, and was again very unfortunate for me. The topics given to me were very difficult. भूदान, पंचतंत्र, कुछ ऐसा था. सर गोदान नहीं, भूदान. भूदा और एक वो नेहरू जी का पंचतंत्र क्या था, वो था. इसी तरह के 2-3 टॉपिक थे, और मैं तो आई वॉज लिटरली अपसेट. एंड एक टॉपिक इंग्लिश वाला था जिसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं थी, वो सेकंड वर्ल्ड वॉर का कोई था. नाउ आई डिडंट नो व्हाट टू डू. मेरा टर्न आ गया, मैंने उठाया और इससे भूदान. थोड़ा सा मुझे मालूम था कि विनोबा भावे वॉज इन्वॉल्व समवेयर, कुछ भी दानों की जमीन को कुछ. सो आई लुक्ड एट अग्रवाल, दैट फेलो, एंड आई, अंदर से मेरे मन में एक भावना आई कि क्या होगा रे, आई विल नॉट गेट सेलेक्टेड. सही इससे ज्यादा तो That self-belief in my potential, that confidence in my abilities, I am trying. मैं प्रयास कर रहा हूँ, क्या होगा देखी जाएगी. ऐसा तो नहीं होगा कि मैं नहीं होगा तो मेरी शादी नहीं होगी. सो मैं खड़ा हो गया, एंड आई स्टार्टेड टू उसको देखने लगा, और देखते ही उसने ऐसे शुरू किया, और मेरे को थोड़ा कॉन्फिडेंस बना, एंड आई स्टार्टेड माई इंट्रोडक्शन इन इंग्लिश. ठीक है धर्मेंद्र भाई. Now, my name is Praveen Kumar, and I am from Indore. I have done BE in mechanical engineering. I have done ME in production engineering from Roorkee. I have done MBA about to complete. And gentlemen, my topic is गोदाम. और ये टॉपिक हिंदी में है, इसलिए मैं हिंदी में बोल. वहाँ से नहीं आ रही और मैं हिंदी में चालू हो गया, और उसमें मैंने 1-2 लाइन जरूर रिलेवेंट बोली. एंड आई शिफ्टेड टू जालियांवाला बाग, तात्या टोपे, बाल गंगाधर तिलक, जो मेरे को कहानियाँ याद. अभी याद था कोई मैं वो 2 मिनट 2.5 मिनट बोलता रहा. सब हंस रहे थे, लेकिन अग्रवाल ऐसे करता, और मैं उसको देख के मैं भी बड़ा खुश हो रहा था कि यार गुरु,
इसमें बोल दिया है तो बस डन But- हो गया। So I continued. Everything was over. सबका हो गया. और दैट जीपीओ एंड देयर वाज वन नायब सूबेदार सरदार जी, वो खड़े थे, तो जब खत्म हुआ तो वो सामने आए और वो बोले, चेस्ट नंबर 2 गेट अप। तो मैंने सोचा अब तो ये आज मेरी पैंट उतारने वाला है सबके सामने, बिकॉज आई न्यू कि मुझे कुछ नहीं पता है। एवरीबडी नोस कि ये बकवास कर रहा है, बट टू बी स्ट्रेट फॉरवर्ड, ही अप्रिशिएटेड सो मच। ही सेज कि इसको पता है कि ये टॉपिक में रिलेवेंसी नहीं है, बट द अमाउंट ऑफ सेल्फ बिलीफ, अमाउंट ऑफ कॉन्फिडेंस, अमाउंट ऑफ दैट ओरेटिंग स्किल्स ही हैज शोन is very good. And he says, I don't know what will happen, whether you are selected or not, but I am very impressed because you are the first candidate in last 3 years I've seen here who had that much of audacity and guts to speak. So ये हिंदी है, तकलीफ है जो आपने प्रश्न पूछा है, बट इसीलिए तो ये मेंटरिंग हो रही है, इसीलिए तो लोगों से यहाँ पर खड़े होकर 12 बार बुलवाया जाता है, लेक्चरेट आज हुए हैं। Everybody spoke on 2 topics. So थोड़ी practice will make you perfect. And practice in front of people who are not known to you. Because here, in this class, there are 10th, 11th, 12th, PhD, BCom, BSc, BE, MA, MCom, law, हर तरह के लोग बैठे हुए हैं. There are people who are airmen and jawans. They come and sit there. Gender, females are there. तो इस तरह के माहौल में बच्चे को अपने आप लगता है कि यार मुझे करना है, और वो करता। फिर भी एसएसबी में इतना रिलैक्सेशन है कि इफ यू आर स्टक समवेयर, लाइक स्टोरी नारेशन में या ग्रुप प्लानिंग नरेशन में, इफ यू आर स्टक समवेयर यू कैन स्विच ओवर टू हिंदी, बट आई एक्सपेक्ट देम टू रिवर्ट बैक टू द ट्रैक, वापस इंग्लिश में। पूरा कहानी हिंदी में करेंगे तो समवेयर डाउन द लाइन विच विल नॉट बी। अब मेरा हो गया जो ऑर्गेनाइजेशन का डिमांड है सर, ऑर्गेनाइजेशन का डिमांड के साथ में सारी जो टेक्निकल आई मीन जो प्रोग्रेस है, मीडियम इज इंग्लिश, जस्ट कांट हेल्प इट। तो इंग्लिश थोड़ा बहुत तो उनको करना पड़ेगा। एटलीस्ट दे शुड बी एबल टू इंट्रोड्यूस देमसेल्फ, दे शुड बी एबल टू डिस्क्राइब सेल्फ अप्राइजल, सेल्फ स्टोरी, इतना तो करें। अब एसआरटी का आंसर आपको इंग्लिश में लिखना पड़ता है, वर्ड एसोसिएशन का आंसर इंग्लिश में लिखना पड़ता है, तो थोड़ा तो करना पड़ेगा। आप बीच में आप 2-4 वर्ड हिंदी के लिख दीजिए, इतना मेरे को लगता नहीं कि उसको वो करते हैं। अगर इंडिविजुअल इज मीटिंग ऑल अदर रिक्वायरमेंट्स, थोड़ा सा इसको भी मार्जिन रेस दे दिया जाता है। सर एक और क्वेश्चन था मेरा आपसे कि जो सैनिक स्कूल्स हैं, तो यहाँ से जो बच्चे पढ़ के निकलते हैं 11-12, तो सर उनको कोई प्रेफरेंस मिलता है एसएसबी में? ये बहुत रिलेवेंट चीज आप पूछ रहे हैं, मेरे से भी कई लोग पूछते हैं एनसीसी करना, ये सैनिक स्कूल, और ये काफी थोड़ा एडवांटेज है, बट मैं उसको प्रेफर ज़्यादा वो भाव नहीं देता हूँ। बिकॉज आप फिर वो ये आपने क्वेश्चन पूछा था मुझसे, आप देखिए कितने सैनिक स्कूल के पास आउट लोग एसएसबी क्लियर कर रहे हैं, मतलब मैं एक्चुअली में कितने कर रहे हैं क्लियर। इनफैक्ट अभी की सिचुएशन ये है कि बच्चे आर नॉट डूइंग वेल, आगे चल के भी अटक रहे नहीं। तो सैनिक स्कूल से फायदा क्या है कि एटलीस्ट आपका फाउंडेशन बन गया है, बट व्हेन इट कम्स टू एसएसबी रिक्वायरमेंट्स वो पूरी तरह से फुलफिल नहीं हो। आजकल सैनिक स्कूल में वो काफ़ी एसएसबी की कोचिंग करवाते हैं, उनको बिल्कुल रटा दिया जाता है, तो वो 40 के 40 बच्चे वही की वही स्टोरी लिख कर आते हैं, वही गड़बड़ है। वहाँ सैनिक स्कूल में क्लासेस ली जाती है। आई हैड एन अपॉर्चुनिटी टू गिव अ टॉक एट सैनिक स्कूल्स, बट आई रियलाइज कि वो सब वही रट के जा रहे हैं, वही चीज़। क्योंकि आप 9th 10th 11th के बच्चे हैं, अंग्रेजी कमज़ोर है, क्योंकि उसी तरह की फैमिली के लोग। आप बताइए बड़ी फैमिली के कौन से बच्चे सैनिक स्कूल में जा रहे हैं आज? तो सर वहाँ का ना एक्चुअली ना फीस भी बहुत ज़्यादा है, फीस भी ज़्यादा है। क्योंकि अभी एक स्टूडेंट का मतलब हमारे पास कॉल आया था, उन्होंने कहा मुझसे कि मेरा बेटे का मैम उसने एग्जाम निकाल लिया है, तो मैं भेजना चाहता हूँ, लेकिन बोले मैं इतना फीस नुकसान नहीं है, नुकसान नहीं है कि नुकसान नहीं है, बट ये है कि वो सेल्फ डिसिप्लिन सीख जाता है, उसका कंडक्ट अच्छा होता है, बहुत सारी चीज़ें सीखता, ओरेटिंग स्किल्स अच्छे हो जाते हैं। लेकिन जो है ना, रिजल्ट्स आर नॉट
It should be like 35% to 40% people who are in Sainik school should be able to absorb. वो नहीं हो रहा है. Same with NCC. अब NCC में क्या है, there are around 40 vacancies for the male, about 10 vacancies or 8 vacancies for the female. भारतवर्ष में 18,000 लड़कियां उसके लिए जान लगा देती हैं. तो गिवन ए चॉइस, आई वुड रिकमेंड टू द गवर्नमेंट इन द एस्टैब्लिशमेंट कि भाई अगर आप एनसीसी को और पावरफुल बनाना चाहते हैं, यूजफुल बनाना चाहते हैं, तो इंक्रीज द वैकेंसीज या सी सर्टिफिकेट वैकेंसी तो बढ़ाओ. लेट देम क्लियर द एसएसबी, बट एसएसबी ने वैकेंसी चाह रही. दैट्स ए कस्ट. 4 वैकेंसी लड़कियों की. यहाँ इंदौर में ही मुझे मालूम है 400 लड़कियां एनसीसी का काम कर रही हैं, सी सर्टिफिकेट कर रही हैं, कम से कम 400. बिल्कुल है जी. तो एनसीसी में वैकेंसी कम है, जो एनसीसी कोटा से है, रिटन एग्जाम. तो मैं, मेरे पास जो बच्चे आते हैं, मैं उनको बोलता हूँ नो चॉइस. यू अपीयर फॉर सीडीएस एग्जाम आल्सो, यू अपीयर फॉर एफकेट आल्सो, यू अपीयर फॉर एनसीसी आल्सो. सेम थिंग आई टेल टू द इंजीनियर्स कि यू गो फॉर डायरेक्ट एंट्री, दैट इज टेक्निकल ग्रेजुएट, and you also appear for FPET and CDS exam because person taking chance. तो एनसीसी की कम से कम नहीं तो एनसीसी की लड़कियों की 20 वैकेंसी होना चाहिए कम से कम, और लड़कों की कम से कम 100 वैकेंसी. आप बच्चे जो है आरडी परेड के लिए सेलेक्ट हो जाते हैं, एक्सट्रीमली गुड स्टूडेंट्स, वेरी आई मीन इतने बढ़िया बच्चे होते हैं एनसीसी के, बट वो एसएसबी में नहीं पास हो पा रहे. तो ये तो थोड़ा सा भ्रांति है सैनिक स्कूल की. इतना अच्छा उनका मैं मेरे ख्याल से अगर आप सैनिक स्कूल जाएंगे, पता करिए हर साल 3-4 बच्चों से ज़्यादा उनका इनटेक नहीं. वही ना सर, एक होता है ना कि मिडिल क्लास एक पेरेंट सोचता है कि बच्चों को भेजूं, मतलब उनके दिमाग में अब ये मिथ बोले सर या जो भी बोलना चाहे कि There should be a separate entry हाँ, मतलब उनके as far as a सैनिक स्कूल is concerned. सेपरेट एंट्री. उनके दिमाग में क्या रहता है, सैनिक स्कूल बोल दिया ना तो वो सैनिक सैनिक समझ रहे हो सर. उनके दिमाग में मतलब वहां से बच्चा निकलेगा और ऑफिसर बन ये निकलेगा. वो सर क्वेश्चन ही ऐसा पूछते कि ये हमारा बच्चा ऑफिसर बन के निकलेगा. मैंने बोला मैडम ऐसा नहीं होता है, उसको एग्जाम्स देनी पड़ेंगी, उसको प्रिपरेशन करना पड़ेगा. यस, आपको ड्यूरिंग एसएसबी इफ यू आर ए एनसीसी ग्रेजुएट और सैनिक स्कूल पास आउट, ड्यूरिंग इंटरव्यू यू विल हैव सम एडवांटेज ओवर अदर, नो डाउट. बट उसका जो एक रिजल्ट जो है, जो दिखना चाहिए, वो नहीं दिख रहा मुझे. जी. तो मैं ये समझता हूँ कि यार बच्चे को अपने से दूर रखना 4 साल 5 साल, और सैनिक स्कूल में उसका एडमिशन भी आजकल बड़ी मुश्किल से होता है. देयर आर रिटन एग्जाम्स एंड माँ बाप की छत्र छाया से, संस्कारों से दूर रखकर उसको सैनिक स्कूल में आप पढ़ा रहे हैं, ये सोचकर कि वो कुछ हो जाएगा, उसकी बजाय घर में ही उसको आगे बढ़ाएं और let him do a good course in good college, could be engineering, could be medical, whatever you feel convenient. And if your choice is armed forces, then graduation is enough. बिल्कुल. सर जैसा आप कई सालों से सब बच्चों को प्रिपरेशन करवा रहे हैं, तो सर Around 4 years or हवाई में वही है सर, मिस्टर रिटर्न 3 years. तो साथ रिटर्न ऑफ रिटर्न. तो सर आपने मतलब क्या ऐसी कुछ क्वालिटीज होनी चाहिए बच्चों में, या बच्चा वो अपने आप को एनालाइज कैसे करे कि क्या मैं एनडीए सीडीएस एफकेट देने लायक हूँ या बन सकता हूँ, तो क्या वो क्वालिटीज है सर जो आप बताना चाहिए? कोई क्वालिटी नहीं है, स्पार्क होना चाहिए, बस जुनून, जुनून, पैशन, पैशन. बिलीव इन माय ऑन पोटेंशियल, आई कैन डू इट. आप चंद्रयान पहुंचा दिए, गगनयान पहुंचा रहे हैं, सो यू नो दैट इज नथिंग स्पेशल. भाई माँ के पेट से सब चीज सीख के नहीं आ सकते. मैं ये नहीं समझता कि कोई क्वालिटी जरूरी है. थोड़ा सा एक्सट्रोवर्ट होना चाहिए, ज़्यादा इंट्रोवर्ट, शाई, रेटिसेंट, वो काम नहीं चलेगा. थोड़ा सा मिक्सअप हो जाए बस. ग्रुप डायनामिज्म में, ग्रुप कंपेटेबिलिटी में एडजस्ट हो जाता. दैट इज वन पार्ट. एंड सेकेंडली प्रॉपर preparation as far as PD and attitude is concerned. Perception, outlook, नजरिया, आपकी थॉट प्रोसेस, दैट शुड बी, वो किसी अच्छे मेंटर या किसी सीजन वेटरन या फिर परिवार में कोई सदस्य ऐसा हो जो इस चीज़ के बारे में बच्चे को टोक सके और उसको आगे रास्ते पर ला सके.
अदरवाइज इट इज जस्ट ए स्पार्क, नथिंग एल्स। और ऐसा कुछ ये नहीं कह सकते कि यही लड़का होगा और ये नहीं होगा। आई हैव सीन हियर द रिजल्ट्स आर समटाइम्स सरप्राइजिंग। जो इंडिविजुअल को मैं नहीं सोचता था कि हो पाएगा, वो इंडिविजुअल हो गया, और जिसको मैं सोचता हूँ जरूर होगा, वो नहीं होता। तो कई बार डेस्टिनी भी एसएसबी में थोड़ा सा है, उसका जो प्रोसीजरल एरियाज है उसमें थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट इज नेसेसरी। बिकॉज क्या होता है कि पहले दिन जाते ही पीपीडीटी होता है, पिक्चर परसेप्शन। अब उसमें 12-15 लोगों का एक बैच बना दिया जाता है। उसके अंदर यू हैव टू परसीव ए स्टोरी, then you have to narrate that story in 1 minute, and then you have to discuss that story essentially to suit a common story which is acceptable to the group. That is the point which people forget. सब अपनी अपनी स्टोरी पे लगे रहते हैं, बट पर्पस क्या है? स्टिच ए कॉमन स्टोरी। 15 लोगों के ग्रुप की सबकी अलग अलग स्टोरी है, बट स्टिच ए कॉमन स्टोरी विच इज एक्सेप्टेबल टू एवरीबडी। अब वहाँ क्या होता है कई बार कि कुछ लोग जो होते हैं जो इस तरह की मेंटेन से नहीं आए हैं, या कम थोड़े से वो हैं, मैं किसी एरिया का नाम नहीं लूँगा, प्रदेश का नाम नहीं लूँगा, वहाँ वो एक तरह से उसको मच्छी बाजार बोला जाता है, फिश मार्केट। तो फिश मार्केट टाइप सिचुएशन हो जाए, एवरीबडी इज फायरिंग, इंस्टेड ऑफ डिस्कशन दे आर डूइंग डिबेट and they argue with each other. Not a tamasha goes on, and then the GTO or the assessor says, wash out. वो 15 में से एक भी सेलेक्ट है। अब उसमें जो अच्छा बच्चा था, जो कि वाकई में टैलेंटेड है या जिसमें पोटेंशियल है, वो अभी जाएगा। तो मैं एसएसबी में थोड़ा सा डेस्टिनी का भी खास तौर से पहली स्टेज, वो बहुत प्रभाव पड़ता है। बिकॉज आई नो देयर आर सम इंडिविजुअल्स, मैं आज भी उन पे होप है कि अगली एसएसबी में होगा, अगली एसएसबी में होगा, क्योंकि कुछ ऐसा हुआ कि वो एवरीथिंग डिपेंड्स अपॉन द ग्रुप। अब दोस 15 पीपल, अगर सारे बब्बर शेर हैं, तो फिर आपको भी बब्बर शेर के ऊपर बढ़ना पड़ेगा। ये आपके लक पे डिपेंड करता है। और एनसीसी एंट्री में यही होता कि एनसीसी के घुटे हुए वो 15 के 15 लोग एक साथ बैठ जाते हैं, और सब एक से वेल प्रिपेयर्ड। बट एनसीसी वाला अगर बच्चा एफकेट सीडीएस का एग्जाम देता है, तो ही डज मच बेटर देन रेस्ट ऑफ द क्रॉप, क्योंकि बाकी लोग बगैर एनसीसी वाले बीकॉम है, बीबीए है, बी है, और ये एनसीसी और बीबीए, तो इसकी परफॉर्मेंस इज मच बेटर देन दोस्ती। तो ये बड़ा बड़ा ट्रिकी सवाल है। लेकिन यस, आप 5-7 मिनट का फेस टू फेस डायलॉग से एटलीस्ट पीपल ऑफ माई सीनियरिटी और माई एक्सपीरियंस कैन अंडरस्टैंड, एंड एटलीस्ट पूरा फोरकास्ट तो नहीं बोलूँगा, बट प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि इसमें क्वालिटी है। 5 to 7 minutes. I have started taking interview on telephone, psyche interview, and I record it. I pose some questions, and essentially to understand the individual's psychological, and then उसको फिर 2-4 बार सुन के, and then try to analyze, and if there is a doubt, again interview, and then decide कि whether this individual is suited for this course or not, whether he will be selected or not, तारी दोनों हाथ से बसती। तो ये थोड़ा सा मतलब कोई आपसे कभी भी ये बात पूछे तो उसका जवाब इसको इसी तरह से दीजिएगा। इसका कोई एक वो यार्ड स्टिक नहीं है कि बच्चे की लंबी मूछें होनी चाहिए, या उसका पावरफुल पर्सनालिटी होना चाहिए, या सिक्स पैक होना चाहिए, या छोटा है, बड़ा होना चाहिए, लंबा होना चाहिए। वो कई बच्चे ये बात करते हैं सर करते ही फिजिकल इतना करते सर हम परेशान। फिजिकल इज नेसेसरी, आई एम नॉट डिनाइंग दैट, बट फॉर द नॉन कमीशन पीपल, ओके। बट ऑफिसर लेवल पर फिजिकल का इतना वो एसएसबी में नहीं। देयर आर सम एक्टिविटीज फिजिकल में सिर्फ जीटीओ टास्क होता है, और कंप्लीटली फिजिकल नहीं है सर। कंप्लीटली थोड़ा आपका इंटेलिजेंस और कि भैया इस सिचुएशन में आप किस तरीके से रिएक्ट करोगे, वो सब देखा जाता है। बिल्कुल अभी नॉट टू गिव अप योर फिजिकल इंडोरेंस, योर मेंटल इंडोरेंस, दैट इज व्हाट इज बीइंग जस्ट। भाई वो एक रस्सी है, उसके ऊपर आपको इधर से खड़े होकर जम करके रस्सी पकड़ के दूसरी तरफ जाना है, तो आप में विल है कि नहीं है, इनिशिएटिव है कि नहीं है? डर तो नहीं रहे। अब ये क्या फिजिकल होगा, आपको 5 किलोमीटर थोड़ी दौड़ा रहे हैं। तो ये छोटी मोटी टास्क होती है, और दूसरी होती है ग्रुप फिजिकल टास्क।
देयर इज अ ग्रुप, यू आर गिवन अ टास्क कि ये दीवार है, इस पे ये बने हुए हैं, इस पे से कूद के ग्रुप को बाहर जाना है, बट उसमें वो आपकी फिजिकल इंडिविजुअल की नहीं दिखी जाती। वो ग्रुप के साथ आपका क्या एज आई सेड, ग्रुप डायनामिक्स ग्रुप दैट वो जरूरी है। तो कमीशन ऑफिसर के लिए फिजिकल फिटनेस जरूरी है, क्योंकि मेडिकल होगा बाद में, बट टेस्ट के टाइम पे ये देखा जाता है कि यस आप हैं, यू आर केपेबल ऑफ हैंडलिंग दिस, एंड आप में वो विलिंगनेस है, जोश है। सर एक जो आपने बात जो बताई अभी कि जो पिक्चर परसेप्शन टेस्ट होता है उसमें पहले ग्रुप होता है सर, है ना? तो वो स्टोरी आपको पहले लिखनी है। मैं प्रोसीजर समझा देता हूँ। यू आर शोन ए पिक्चर ऑन ए स्क्रीन, एंड वो इंटेंशनली थोड़ी धुंधली हो, बिकॉज परसेप्शन परसेप्शन प्ला इट्स लाइक ए स्टिमुली, ये आपको एक झटका दे रहा, तो स्टैटिक पिक्चर, सो इट इज ए अनकॉन्शियस और सेमी कॉन्शियस एक स्टिमुली है आपके सामने। सो यू आर शोन ए पिक्चर फॉर maybe 30 seconds, then you are given 4 minutes to write a story, 1 minute to write on that answer sheet how many characters are there, mood क्या है, टाइटल क्या है, ये सारी चीजें, and then 4 minutes to write your story. Now वो स्टोरी सुन के लोग इसको इंग्लिश की कंपटीशन समझ लेते, इंग्लिश लिखने की कंपटीशन है, स्टोरी को इंग्लिश में लिखना, बट वो नहीं है। तो उसके लिए देयर इज ए प्रोसीजर, देयर इज ए प्रॉपर यू नो what do I say, proper teaching is required. This is how you should progress your story. And what is being assessed in that story is completely different than what others think. Once you write the story, you are given time to read that story, 1 minute. And thereafter, each individual has to narrate his story. Now, the difficult part, Dharmendra, is that 4-minute story has to be condensed to 1 minute. आपने 4 मिनट की स्टोरी लिख के उसको 1 मिनट खड़े होकर बोलना है इन फ्रंट ऑफ एवरीबॉडी। सो यू नो ये पीपीडीटी एक ऐसा टेस्ट है, इसमें आपकी 80% पर्सनालिटी ट्रेट्स आर वही इनिशियली पकड़ी जाती, वही स्क्रीनिंग का वही स्क्रीनिंग है ना पा। अब आप उस 4 मिनट की स्टोरी को कंडेंस करके 1 मिनट में बोलना, वो 1 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं देता है, तो पहले तो उसको कंडेंस करना इटसेल्फ इज़ वेरी डिफिकल्ट, लोग पूरी स्टोरी खत्म ही नहीं कर पाते। जब आपने सबने अपना अपना नरेशन दे दिया, तो 10, 12, 15 लोगों का एक ग्रुप होता है, उस ग्रुप में वो अपनी अपनी स्टोरी के सबने सुना आपका नरेशन, उस ग्रुप में वो स्टोरी नरेट जो करी है उसके ऊपर डिस्कशन होगा, टू स्टिच टू वीव अ कॉमन स्टोरी विच इज एक्सेप्टेबल टू द कंप्लीट ग्रुप। लेट अस टेक एग्जांपल कि ही सेज कि हमको सर पिकनिक के लिए पताल पानी जाएंगे, ये करेंगे, आपने कुछ बोला, मैंने कुछ बोला, हर एक की अपनी एक परसेप्शन है, क्योंकि वो एक धुंधली चीज है, उसमें हर एक की अपनी एक सोच है। अब हम तीनों को बैठ के डिस्कस करना है कि बेस्ट ऑप्टिमम या इफेक्टिव या इफिशिएंट मीन्स क्या ऑप्शन क्या है, वही चीज आपको बैठ के डिस्कस करनी है। बट वहाँ होता क्या है कि हर आदमी अपनी स्टोरी के ऊपर लगा रहता है, दूसरे से कन्विंस भी नहीं होते ना। आदमी इसे सुनते नहीं है नरेशन। व्हेन अदर्स आर गिविंग नरेशन, आपका दिमाग कहीं और है, तो लिसनिंग इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। वहाँ पता समझा आपको अगर आपने 15 लोगों की पूरी स्टोरी सुनी, ध्यान से सुनी, तो एटलीस्ट यू कैन कंट्रीब्यूट। तो आप ग्रुप डिस्कशन में वो ये देख रहा है कि व्हाट इज योर कंट्रीब्यूशन इन स्टिचिंग अ कॉमन स्टोरी। प्लीज आई रिपीट, योर कंट्रीब्यूशन इन स्टिचिंग अ कॉमन स्टोरी, इट मे नॉट बी योर स्टोरी। ओके, हाँ ऐसा भी हो सकता है। आप अभी वार प्लानिंग क्या होती है, 10 लोग बैठे हैं, सीनियर लोग बैठे हैं, स्ट्रेटेजिकली प्लान कर रहे हैं, आपने खुद कहा, आपने खुद कहा, आपने खुद कहा, मैंने खुद कहा, और सब में बैठ के एक ऐसा इफेक्टिव और ऐसा प्रॉपर प्लान बनाया जो कि इफिशिएंट भी है और जो कि टाइमली एग्जीक्यूट भी हो रहा है और जो कि रिजल्ट ओरिएंटेड है। सो सबने बैठ के एक प्लान बनाया ना, अलग अलग प्लान था सबका। दैट्स व्हाट इज पीपीडीटी, पिक्चर परसेप्शन एंड डी डिस्कशन टेस्ट नॉट डिस्क्रिप्शन, डिस्कशन तो जब तक आप उस स्टोरी को देखिए, हो सकता है कि आपकी स्टोरी जो है वो दूसरों से अलग है,
हाँ सर, ये थोड़ा मुझे बहुत अलग है, वो साथ अलग हाँ यूनिक है, आपकी स्पेशल है, बट अनफॉर्चुनेटली ग्रुप इज नॉट एग्री। तो 10 को सैल्यूट किया, देन यू कंट्रीब्यूट ना। उनकी स्टोरी में जो ग्रुप को एग्री कर रहा है, उनकी स्टोरी में कुछ अच्छी बातें जो आपकी स्टोरी की है, जो आपका परसेप्शन है, वो लेकर आइए, बुरी जीरी, तो योर चांसेस ऑफ सिलेक्शन आर मोर। क्योंकि सर वो स्क्रीनिंग जो होता है ना 15 में से 3 से ज्यादा नहीं निकलते। कल सर शायद 80% है ना कि नहीं? 15 का ग्रुप होता है, मैं एक एवरेज आपको बता रहा हूँ, उसमें से 2-3 निकलते हैं स्टेज 2 के लिए, और स्टेज 2 में 30, 35, 40 लोग रहते हैं, उसमें 3, 4, 5 वैकेंसी होती। तो टोटल इनटेक इज रेंजिंग फ्रॉम 150 टू 180। तो 150 पहुंचे, 15 के 10 ग्रुप बन गए, हर ग्रुप में से 3, 4 लोग निकल गए, बाकी 30 लोग हो गए, 30 लोगों का सेकंड स्टेज। से डिपेंड्स अपॉन वैकेंसी आल्सो, मतलब मैं आपको एक रफ फिगर दे रहा हूँ। और इतना फिगर है सर। स्क्रीनिंग हो गया, सपोज जो बच्चे स्क्रीनिंग से आगे जाते हैं, फिर किस तरीके के टास्क होते हैं? हाँ, एसएसबी 2 स्टेजेस में होती है। पहली स्टेज हमने बात कर ली, उसमें पहले होता है जाते ही आपका ऑफिसर्स इंटेलिजेंस रेटिंग, OIR, because there are some people who have come directly without any written exam, like in NCC, like technical military. So, and also you need to know officers intelligence. You are planning to become a commission officer. तो बेसिकली इट इज ए नॉन वर्बल वर्बल रीजनिंग, और वो उस तरह के क्वेश्चन होंगे, नॉट वेरी डिफिकल्ट, बट दैट इज इंपॉर्टेंट बिकॉज फाइनल मेरिट में OIR के मार्क्स जुड़ते हैं। ठीक है, तो OIR खत्म हुआ, उसके बाद आपका ग्रुपिंग हो जाएगा, आपको पिक्चर दिखाई जाएगी, आपको 4 मिनट दिए जाएंगे, आप लिखेंगे पिक्चर की स्टोरी, फिर 1 मिनट दिया जाएगा, आप स्टोरी बोलेंगे, फिर 10 से 12 मिनट का डिस्कशन होगा। खत्म होते ही वो 1 घंटे के अंदर आपका रिजल्ट डिक्लेयर कर देंगे। जो स्क्रीन आउट हो गए वो घर जाइए, और जो बच गए 30, 35, 40 लोग, वो सेकंड स्टेज। नो सेकंड स्टेज में बेसिकली सेकंड डे जो है वो साइकिक टेस्ट का होता। तो पहले दिन ही आपका बैच शुरू हो जाएगा, वर्ड एसोसिएशन टेस्ट। अब अगेन यहाँ पर भी एक कॉन्सेप्चुअली पीपल आर रॉन्ग, एंड दोस टीचिंग आर आल्सो नॉट टीचिंग करेक्टली। एसोसिएशन का मतलब क्या है? संबंध जोड़ना। इट इज नॉट सेंटेंस मेकिंग टेस्ट कि आपको मैंने वर्ड दे दिया और आपने सिगरेट, मैंने बोला इंजुरी, तो आपने बोल दिया सिगरेट स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। ये तो यूनिवर्सल फैक्ट है, और ये तो कोट है, ये तो आप तो सर यू नो इट्स से संबंध जोड़ना। कितनी देर में? 15 सेकंड्स में। 15 सेकंड्स में आपको समझना भी है, कंप्रेहेंड करना है मतलब, और आपको लिखना है। वेरी लिमिटेड टाइम, सो दैट प्रेशर इज इंटेंशनली क्रिएटेड, ताकि ऑनेस्ट जवाब निकले, रटा हुआ जवाब नहीं निकले। नहीं तो लोग कोट्स लिख के आ जाते हैं, इडियम्स लिख के आ जाते हैं, इधर उधर की बातें लिख के आ जाते हैं। कई बार वो फिर रेडियस इज कन्फाइंड टू मी, माई सेल्फ, आई, दोस टाइप ऑफ थिंग्स। सो इस तरह से 60 वर्ड होंगे, खटाखट खटाखट खटाखट, मतलब 30 मिनट के अंदर खत्म। ऑन एन एवरेज 45 वर्ड से ज़्यादा लोग कर नहीं पाते। जो बहुत ज़्यादा अच्छे प्रिपेयर्ड होते हैं वो 55-60 करीब पहुँचते, वरना ऑन एन एवरेज नहीं कर पाते। नो, ये जो वर्ड एसोसिएट करके आपने जो अपने सेंटेंस बनाए हैं, इससे आपका क्वालिटेटिव असेसमेंट होता है। आपकी जो सोच है, नेगेटिव वर्ड्स, डार्क शेड के वर्ड्स जो है, आपकी सोच, आपकी परसेप्शन के हिसाब से उसका आप मीनिंग लिखेंगे, क्योंकि वो आपका समय नहीं है। आपको मैंने दे दिया ब्लड, आपको दे दिया मैंने डेथ, आप बनाइए सेंटेंस डेथ। मैं आपको 1 मिनट देता हूँ। आई एम अफ्रेड ऑफ डेथ। आई एम अफ्रेड ऑफ डेथ, ये क्या बता रहे हैं आप? कौन नहीं अफ्रेड है? हाँ, ये तो नॉर्मल हो। बट मैं बोलता हूँ कि कॉम्बिनेशन ऑफ अनिल कुंबले एंड हरभजन सिंह वाज ए डेडली कॉम्बिनेशन इन इंडियन स्पिन क्रिकेट, स्पिन कॉम्बिनेशन इन इंडियन क्रिकेट, डेडली। डेडली। इंडियंस आर डाई हार्ड फैन ऑफ क्रिकेट, डाई हार्ड। तो उसने एक नेगेटिव वर्ड है डेथ, उसके मैंने नेगेटिविटी को इग्नोर किया, उसको डेथ को मैं अब किस जगह ला रहा हूँ? डाई हार्ड। सर हाँ, नाउ आई अंडरस्टूड। मैंने तो सिर्फ वर्ड का हाँ यही तो कंफ्यूजन है मैडम, बाकी इसीलिए तो ऐसे भी है सर, लोग जो जाते हैं उनको मालूम नहीं है। देयर इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ प्रॉपर मेंटेक। आई विल नॉट से कोचिंग, बिकॉज कोचिंग इज वेरी एक्सपेंसिव। ये बेटर्स जो है हम लोग,
I mean, सर मेरा दिमाग खुल गया। I'm telling you, all veterans, I request all veterans. I don't know आपका podcast जाता है कि नहीं जाता है, including my airmen and my other people. Please guide them correctly. वो क्या होता है, सेंटेंस मेकिंग टेस्ट पढ़ा लिया उन्होंने। सर बिल्कुल आप मैंने तो सेंटेंस में वो किताबों से पढ़ पढ़ के वही उनको कोचिंग इंस्टीट्यूट में रटा दिए जाते हैं और वही सेंटेंस लिख कर आते हैं। मतलब जो वर्ड दिया है ना सर, उस वर्ड के चारों तरफ घूमना है, मतलब फॉर अ सेकेंड, मैं और संभाल, और वहां से आपने वर्ड सुना मदर, मदर, ओके, बनाइए सेंटेंस 15 सेकंड्स। मदर, वुमेन शुड बिहेव मदरली। ठीक है, वुमन शुड बिहेव मदरली, ये आपकी सोच है, आपका परसेप्शन है, हाँ। एसेंशियली ये आपका बिलीफ है। वर्ड एसोसिएशन टेस्ट से आपका बिलीफ निकलता, ओके। बट मैं ये कहता हूं कि मदर इज ए एपिटोम ऑफ केयर, कंपेशन, लव, अफेक्शन, सो मेनी थिंग्स। ये मेरी सोच मेरी माँ के बारे में या सारी माँ के बारे में। यूज द फ्रेज, आई से फियर, बनाइए फेलियर, और सिंपल वर्ड्स, कोई कठिन इंग्लिश नहीं है, कोई ऐसा वर्ड नहीं है जिसमें एक आध होगा जिसको आपको नहीं मालूम होगा। लाइक आज मैं करवा रहा था तो क्रुक था एक वर्ड, वो बच्चे को समझ में नहीं आया क्रुक का मतलब क्या होता, मैंने बोला धूत, समझ गया, एक आध वर्ड होगा, बट 60 में से 59 वर्ड्स आपको मालूम होंगे। लेकिन अब यहाँ पर ये इट इज वेरी इंटेलिजेंट, मतलब ये इंटेलिजेंस ही है सर की, वो शब्दों के साथ घूमना। बिल्कुल, दे पुट इन lot of time and lot of effort in preparing for the lead questionnaire. अब ये मुझे सर बहुत अच्छा लगा, मतलब आप मैं तो मैंने सर लिटरली बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स पे देखे हैं इंटरव्यू, और वो थोड़ा सा ये जो We say कि भी आपने हिंदी बोल के बताया ना वर्ड का, तब समझ रहा है कनेक्शन। same is the problem with situation reaction test एसआरटी के साथ, सेम प्रॉब्लम, डिस्पाइट द फैक्ट कि वहां ज्यादा लिखना नहीं है, ज्यादातर क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस हैं, और कई 20% क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस है, थोड़े क्वेश्चन है, पर 30 सेकंड का टाइम है, बट दैट टाइम इज वेरी लेस। आपको सिचुएशन पूरी पढ़नी है, पास्ट टेंस की भी है, और आपको 30 सेकंड्स में पढ़ के समझ के आपको आंसर देना है, और 60 सिचुएशन है और 60 मिनट है, सॉरी 30 मिनट्स, 30 मिनट्स और 60। 60 सिचुएशन। ऐसे ही सेल्फ डिस्क्रिप्शन, व्हाट इज द परसेप्शन ऑफ योर पेरेंट्स अबाउट यू, खुद लिखो। व्हाट इज द परसेप्शन ऑफ योर फ्रेंड्स अबाउट यू, आपको लिखना है वहां बैठ के। व्हाट इज द परसेप्शन ऑफ योर एम्प्लॉयर और योर टीचर अबाउट यू, व्हाट इज योर परसेप्शन अबाउट योर सेल्फ। नाउ क्या होता है, ये चारों चीजें जब साइकोलॉजिस्ट जो कि सफेद बालों वाला है, बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है, हजारों कापियां रोज चेक करता है, जब ये चारों पैरामीटर्स उसके सामने होते हैं, तो इट्स लाइक कि किसी ने बताया कि चोरी करके गया था तो उसका काला ये था, उसके एक तिल था, उसका ये था, वो पूरी आपकी साइकोलॉजिस्ट पूरी आपकी पर्सनालिटी निकाल लेता है उसमें, और दैट पैराग्राफ और दैट पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन इज बीइंग फेड टू द इंटरव्यूअर। वो साइकी के रिमार्क्स इंटरव्यूअर के पास जाते हैं। अब इंटरव्यूअर फेस टू फेस उस चीज को या तो वेरीफाई करेगा, और या फिर अगर मान लो आप बॉर्डर लाइन है तो और भी कोशिश करेगा जानकारी प्राप्त करने के लिए। तो ये वैसे ये कॉन्फ्लिक्टिंग पर्सनालिटी वाले को 80% केस होते हैं। एक जगह मेरी पर्सनालिटी लिख दी, एक जगह आपकी सोच लिख दी, एक जगह आपकी सोच लिख दी, वहीं आप स्विमर बता रहे हैं अपने आप को, इस केस में आप यू आर एक्टिंग एज ए नॉन स्विमर, मतलब बहुत सारे। हाँ, वो पढ़ने से सर वो पता चल जाता है। spirit to perform itself is differing. So this मैं ये नहीं बोलता कि भाई कि many people without mentoring, without coaching, they have been selected, no doubt, but it depends upon their growth in their family or in their surrounding. कुछ हेरिडिटी जैसा मैंने बताया था, कई सारे एयरफोर्स के सीनियर लोग हैं या वेटरन्स है या जवान हैं या वारंटेड रैंक से उनके बच्चे निकल रहे हैं। परिवार, फैमिली, कॉलेज, एजुकेशन, सो मेनी फैक्टर्स आर देयर। सो थोड़ी सी अगर आपको इसके बारे में बच्चे को जानकारी नहीं है तो मेरी एडवाइस ये है कि उसको सजेस्ट करिए किसी वेटरन के पास में, किसी रिटायर्ड के पास में या सर्विंग के पास में भी। ही विल नॉट डिनाई, गो एंड टेक सम ब्रीफिंग इंस्टेड ऑफ यूट्यूब, ऑनलाइन कोचिंग, यूट्यूब कोचिंग और इंटरनेट कोचिंग और रीडिंग बुक्स। मैं इसको अच्छा नहीं लगा।
ऑनलाइन कोचिंग के मैंने नतीजे देखे हैं। मेरे कॉलेज में इंजीनियरिंग करने जो लोग आ रहे हैं या बीकॉम बीएससी एमबीए करने आ रहे हैं, जो 2 साल बच्चे 10th और 12th घर में बैठ के किए, ओपन बुक एग्जाम, ओपन कई केसेस हुए। तो ऑनलाइन कोचिंग प्रभावी है, बट वो दूसरी क्वालिटीज जो है ना वो डेवलप नहीं हो रही है। अगर ऑनलाइन कोचिंग इतनी प्रभावी होती तो दुनिया में इतनी यूनिवर्सिटीज वगैरह क्यों कॉलेज कैंपस चला रही है भाई? बंद कर दो, लेट इट बी ओनली ऑनलाइन, घर पे बैठो करो। हो रहा है ऑनलाइन, बहुत सारे हैं, आप देखे हो कि इग्नू कर रही है काफी कोर्सेस, अमेटी कर रही है, ऑनलाइन कोर्सेस चल रहे हैं। और अब दैट इज फॉर सीकिंग एम्प्लॉयमेंट, आई मीन जस्ट गिविंग यू सम नॉलेज, but may not improve your soft skills, may not develop your personality the way it is expected to be in a sir. जी तो सर बहुत अच्छा लगा मैंने, मेरा तो आज पूरा दिमाग खुल गया। नहीं, so nice. नहीं एक्चुअली ना सर क्या होता है ना, छोटी छोटी चीजें मतलब एक शब्द को समझना, मतलब कितनी गलती हो जाती है सर एक वर्ड को समझने में हमसे ना। वो बच्चे सर वही स्टूडेंट्स वही करते हैं, मतलब उनको कोई बताने वाला नहीं है, वही बात है ना। लेकिन प्रॉपर गाइडेंस मिले, मेंटरिंग मिले तो बच्चा कर सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। जैसा आपने स्टार्टिंग में बोला कि कुछ भी नहीं चाहिए ना, अब रॉ हो तो भी ठीक हो, अब जैसे हो वैसे ही रहो, बिल्कुल, कुछ भी बनने की प्रिटेंड करने की या ऐसे honest and natural response, बस that is what is required in SFB. Bragging, lying, इस तरह की चीजें आप करोगे तो you are not at all fit to become a commission officer. Honesty and integrity, these are the two basic platforms, pillars, जिस पर डिफेंस फोर्सेस खड़ी हुई। तो अगर वो इंटीग्रिटी ऑनेस्टी आप नहीं दिखा रहे हैं, या वो झूठ बोल रहे हैं, या आप जो अनक्वालिफाइड टू चीज़ें ऐसी बोल रहे हैं कि जिसके बारे में आपको नॉलेज नहीं बट झूठ लिख रहे हैं, ये पीआईक्यू में करते हैं बच्चे, ये लेक्चरेट में करते हैं। लेक्चरेट इज ए पार्ट ऑफ ग्रुप टेस्टिंग, दो इट इज ए इंडिविजुअल लेक्चरेट। ये पीपल आर नॉट अवेयर कि क्या मतलब है, तो वो अपना भाषण दे के चले आते हैं। बट नो, हाउ कॉन्फिडेंट यू आर इन फ्रंट ऑफ द ग्रुप, हाउ you connect with the group, that is what is being assessed in the lecturate. तो 3 मिनट बोलना पड़ता है, वो बच्चा सोचता है मुझे एक टॉपिक पे बोलना है, बट इट इज नॉट दैट, इट इज ए पार्ट ऑफ ग्रुप टेस्टिंग। ये जीटी वाला जो तीसरे दिन से चालू होता है उसमें शुरू होता है लेक्चरेट, जिसमें जीडी भी होगी, एचजीटी भी होगी, एफजीटी भी होगी, और ग्रुप टास्किंग होगी, कमांड टास्किंग होगी, सो मेनी थिंग्स आर देयर। उसमें लेक्चरेट है, 3-3 मिनट बोलना है। बच्चा ये सोचेगा मुझे बोला रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट बोलो, तो बोल दिया। आप कितनी अच्छी तरह से इन्फ्लुएंस कर पा रहे हैं ग्रुप को, आपका कनेक्ट कैसा है ग्रुप के साथ में, दैट इज व्हाट इज बीइंग असेस्ड, दैट कैरीज मोर वेटेज देन योर इंडिविजुअल स्पीकिंग एबिलिटीज, राइट मैम? तो बहुत है एसएसबी के लिए, इसीलिए जो मैं कह रहा हूँ कि शॉर्ट मॉड्यूल मेंटरिंग is good. Full time coaching also I do not subscribe because है ना 1 लाख 1.25 लाख 80,000 रुपया लोग चार्ज कर रहे हैं। अब बड़ी जगह पे चंडीगढ़ जैसे या दिल्ली वगैरह में 2-2 लाख रुपए चार्ज। और सर वो 10-15-20 डेज का वो भी मतलब जो भी है, it doesn't require long term coaching program. It requires mentoring by a experienced person who understands, and that individual should know what is SSB looking for in you. आप में क्या ढूंढ रही है, that's all. और किताब पढ़ने से और ये आपको केवल एक आपको आइडिया दे देगा। यूट्यूब देखोगे आपको समझ में आ जाएगी, पर उसको लगेगा यार ये तो यार ज़्यादातर जगह बच्चों को ये लगता है कि अंग्रेजी जज की जा रही है। एक ही थोड़ा परसेप्शन रहता है मेरे में कि वो इंग्लिश वो इसीलिए नहीं, जो आपने अभी डिस्कशन किया वो थोड़ा उनके मैथ और ये वेट और एसआरटी में इंग्लिश का कुछ नहीं है, कुछ खास नहीं है, सिंपल इंग्लिश। यू कैन यूज लेकोनिक, टेलीग्राफिक लैंग्वेज, वी डोंट हैव टू बी ग्रामेटिकल इन एसआरटी। सिमिलरली इन पीपीडीटी ग्रामेटिकली करेक्ट हो या ना हो उससे कुछ नहीं चलता है, कॉमा लगाइए, फुल स्टॉप लगाइए, आप सेमी कॉलम लगाइए, लेकोनिक यूज करिए, संक्षिप्त में लिखिए, एब्रीवेटिव लिखिए, चलेगा। इंग्लिश थोड़ा सा डिस्कशन में लग जाती है कई बार, बट अगर आप डिस्कशन में ट्रैक पर नहीं है इंग्लिश में तो आप हिंदी में आइए और वापस से ट्रैक पे आ जाए। सर ये बहुत सारे जो क्वेश्चंस थे
अगर ये पॉडकास्ट हमारा जाता है और वक्त से मतलब डेफिनेटली। मेरा मेरा एक ही मिशन है और एक ही चीज है और एक ही मैसेज है थ्रू योर एकेडमी. जी सर। My dear veterans, non-commissioned, commissioned, try to involve yourself in actually grooming up these people who are very keen, जिनका पैशन है फौजी बनना, वो जिंदगी भर उनके दिल में रहता है कि मैं नहीं बन पाया. तो उनको थोड़ा सा डोंट वरी अबाउट पर्क्स, प्रिविलेजेस, मनी एंड सो मेनी थिंग्स. ये मेडल मिलेगा, कुछ नहीं मिलने वाला. रिटायर्ड इज एलईडी, फ्यूज्ड एलईडी. मैंने जितनी रोशनी देनी थी दे दी जब तक मैं वायुसेना में था. अब मैं किसी काम का नहीं हूँ, मैं फ्यूज एलईडी हूँ. बट को फ्यूज एलईडी से मैं कुछ चीज बना सकता हूँ. गिव सम टाइम टू दी यंग जनरेशन हु आर एक्चुअली शोइंग यू दैट स्पार्क, दैट डिटर्मिनेशन कि मुझे बनना है. तो उनको थोड़ा सा गाइड कर एंड डिस्करेज देम फ्रॉम दिस ऑल. सब मेरे से नाराज होंगे, मेरे दोस्त है कई सारे यूट्यूब वगैरह पे. डिस्करेज पीपल नॉट टू ऑनलाइन प्रिपरेशन फॉर डिफेंस एस्पायरेंट. नो 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 नो. सर क्योंकि हमारे पास बहुत कॉल्स आते हैं सर, हम कॉल पे यही बोलते हैं. अब सर अब पूछते हैं कि मैडम क्या है क्लासेस का टाइम, और सर मैम फीस कितनी है, और हम फीस दे देते हैं ऑनलाइन, हम आ जाते हैं. तो सर जो झाला सर उनका यही कहना रहता है, भैया तू आता हो तेरे को देखूं मैं. अब सब सही प्रोटेक्शन तो होना चाहिए. एक पोटेंशियल और एक जो नॉर्मल फिजिक रिक्वायरमेंट है जो फिजिकल, वो भी तो चेक करनी अरे आपका ट्रेनिंग जो है वो थोड़ा उस लेवल का है. मैं कमीशन अफसर पे फिजिकल रिक्वायरमेंट्स आर ड्यूरिंग मेडिकल. वो तो हाँ, वो तो हाँ. आपने बड़ी अच्छी बात बोली. मैं लेकिन एक बात आपको बोलता हूँ, ये मेरा मैसेज है जी मासेस. बिल्कुल सर, मैसेज दीजिए. एसएसबी जरूर दीजिए लाइफ में एक बार. हाँ सर, मुझे भी ऐसे ही लग रहा है, पर मैं सर ओवर एज हो गई था. बिल्कुल सर, लाइफ में एक बार जरूर मैंने बिल्कुल. सर ये Amount of, I mean, you will know where do you stand. You will not get such a beautiful platform to assess your capabilities. Evaluation, every individual should go for SSB. Where is the problem? क्या पैसा लगता है? पहली बार तो आपको सरकार टिकट देती है. तो every individual must go and assess himself. You are on a platform where people from different states, big educational institutions with different background, you're competing with them. So and you will miss out a wonderful opportunity to make good friends. Because वो 5 दिन का स्टे अगर आपको मिला वहां पर, तो आप जो वहाँ 5 दिन के फ्रेंड्स बनाएंगे वो जिंदगी भर आपके फ्रेंड्स रहेंगे. बिकॉज रात में तो दिन भर आप उनके साथ है, आप compete भी कर रहे हैं, लड़ाई भी कर रहे हैं, खाना भी साथ खा रहे हैं. सो SSB इज ए like you go for youth festivals. मैं अपने कॉलेज में बच्चे जो भी मेरे पास आते हैं बोले दे SSB, क्या दिक्कत है यार, नहीं जाना है डिफेंस में मत जाओ. मत जाओ ना, एक बार देखा था ये बस सही. दिल फौजी होना चाहिए. जाओ देकर आओ, और देने के बाद में फिर आप बताओ कैसा लगा. सो आई मीन इफ यू डोंट गिव द SSB यू विल नॉट लिव द लाइफ जो आप हमको मिली है. I mean, we have not discussed anything about Air Force, neither. I need to talk about those benefits and what all things I have learned and everything. Kudos to my organization called Indian Air Force. एक 20 साल का इंजीनियर कहाँ से कहाँ पहुँच गया. और I never thought of it that I will be awarded by President Vice. I will be sent abroad many times for long courses and short durations. I'll handle so many type of different equipments and different platforms where I become a leader. तो प्राइड भी है, रिकॉग्निशन भी है, बहुत सारी चीजें हैं. इट्स ए ड्रीम सर्विस. And at my time when I joined, madam, please understand, my basic pay was 750 rupees Dharmen. How much? 750 rupees per month. The first item I bought after marriage, हिम्मत करके, was a Godrej का fridge refrigerator in 3,000 rupees on loan. I was posted at Kalaikunda. Loan 200 rupees per month. फरियाबादी सर कलाईकुंडा में 2 years के लिए. मेरी पहली पोस्टिंग थी वो एज ए पायलट अफसर. उस समय एयरफोर्स में पायलट अफसर रैंक होती थी. 750 was my
बेसिक पे टोटल मिला के 1100 रुपये मिलते थे, 300 रुपये मैस ले लेती की। Today armed forces are giving the best part is post retirement benefit. काफी बेनिफिट्स also. Something wrong happens to me, God forbid, my wife will get 80,000 rupees per month. Yeah, what else you want? It's a family pension. And today I get a pension 50% of my basic. I retired as Air Vice Marshal, which was 2,15,000 rupees. Divide 50% plus DA. And then so many numerous benefits. The best is, the military hospitals, the wonderful work ECHS is doing. बिल्कुल सर. Canteen. हम्म. And the life. Ordinary से कहीं ज़्यादा अच्छी, the club or the friends. I mean, I don't know, long ago, करीब 20 साल पहले कभी देखा होगा इसको मैंने. But still, we are good friends. बिल्कुल सर. So, इस तरह का environment सिविल लाइफ में कभी नहीं मिलेगा. इस तरह के अपॉर्चुनिटीज, इस तरह का थ्रिल, इस तरह का डायनामिज्म, इस तरह के आपको Air Force has given me many opportunities. So, you do this, you play golf, you play cricket, you do this, you go for that. कौन सी ऑर्गेनाइजेशन देगी यार? एयर फोर्स ने मुझे एमटेक करवाया, 2 साल अपने बीवी बच्चों के साथ IIT पुणे में एमटेक किया, फ्री ऑफ कॉस्ट, तनख्वाह मिलती थी. कौन सी ऑर्गेनाइजेशन आपको 2 साल एमटेक कराई? खुद से हम देर आर प्रोविजंस फॉर स्टडी लीव, PhD, 2 साल की स्टडी लीव लेते हैं लोग. Those who are interested in sports कंट्रोल बोर्ड, क्या अपॉर्चुनिटीज है, यू नेम इंडिविजुअल्स. सो इससे बेटर लाइफ नहीं है. नहीं. ठीक है, आपको काम करना पड़ेगा 24/7. यू हैव टू बी डिवोटेड सोल्जर, नो डाउट इन दैट. बट द अमाउंट ऑफ इटर्नल सेटिस्फेक्शन यू गेट, उसका कोई कंपैरिजन नहीं. तो वही ना सर, जो आपने एयरफोर्स से जो भी मतलब बहुत सिखाया. दिया है, वो आज आप बच्चों को दे पा रहे हैं सर, स्टूडेंट्स को. ये बड़ी बात है सर. क्योंकि क्या होता है ना, अगर आप ये नहीं करते तो वो सारी चीजें वैनिश हो जाती ना, तो किसी को पता ही नहीं चलता कि मतलब ऐसा था. और सर Or there are people I know, some of them are known to me, जैसा मैं कर रहा हूँ, they are doing it. बहुत तो मैंने ऐसे, सर बट मैं चाहता हूँ कि जो स्टूडेंट, जो भी एस्पायरेंट है, जो आपको अप्रोच करता है कि सब मेरा इंटरेस्ट है, अगर उसमें वो भावना है, वो जोश और वो डायनामिज्म या वो स्पार्क दिखाई देता है, वो चिंगारी दिखाई देती है, तो गाइडें आपको जितनी बार याद रखेगा. और हमारा गाइडेंस जो होगा, वो गाइडेंस इज मच बेटर देन पीपल हु आर एक्चुअली कमर्शियल. देयर आर लॉट लार्ज नंबर ऑफ रिटायर्ड पीपल. वो रिटायर मीन्स स्पेशली प्रीमेच्योरली रिटायर्ड, जिनकी सर्विस पूरी हो गई है, उनके लिए तो खैर नहीं है. बट प्रीमेच्योरली जो विंग कमांडर या मेजर या कैप्टन या इस लेवल पे रिटायर हुए हैं, दे ओपन कोचिंग इंस्टीट्यूट ऑल ओवर इंडिया. ठीक है, कमीशन है, वो गलत काम नहीं कर रहे हैं. बट पहले ये ट्राई करके देखो ना कि अप्रोच somebody who is knowledgeable, who is experienced and who has put in seasoned air veteran. उससे बातचीत करो, वो समझाएगा. और अगर आप में हंगर है तो जरूर सक्सेस आपको मिलेगी. इट्स अ सम ऑफ रिपीटेड एफर्ट्स एग्जीक्यूटेड डे इन एंड डे आउट. दैट इज व्हाट इज सफलता. चलकर नहीं आएगी, करना आपको सफलता के पास जाना पड़ेगा. पाएगा. बिल्कुल सर. तो सर एक लास्ट मैसेज क्या देना चाहेंगे सर एस्पिरेंट्स के? लास्ट मैसेज, देयर आर मेनी थिंग्स आई हैव ऑलरेडी स्पोकन. मैं एक बात कई बार बोलता हूँ, 1000 बार बोलता हूँ और बोलता रहूँगा कि किसी भी मिशन को अकम्प्लिश करना है, कोई भी मिशन हो, लाइफ में बहुत सारे मिशन हो सकते हैं आपके, ये जरूरी है कि कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए. ये सबसे बड़ी कठिनाई है आजकल की जनरेशन. कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए. These 3, 4, 5, 6 years are going to be very important time span in your life. Either you perform or you perish. सड़ जाओगे. ये 4 साल 5 साल जो है मेहनत करिए, कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए, कंसंट्रेटेड एफर्ट्स करिए, फोकस रखिए अपने मिशन पे.
सफलता जरूर मिले। बोला था मैंने थोड़ी देर पहले, सफलता का दरवाजा उसी के लिए खुलेगा जो उसको खटखटाने का प्रयास करेगा। आप आगे बढ़ेंगे, जरूर दरवाजा खुलेगा। सो फोकस इज इंपॉर्टेंट एंड कंफर्ट जोन से बाहर निकलना। ये कंफर्ट जोन मार रहा है हम लोग। with this video. And that comfort zone you rightly brought out somewhere in between, you mobile, internet and all those things. That's the comfort zone. आपको सब मिल रहा है, यही ऑनलाइन का प्रॉब्लम है। घर बैठे कुर्सी पे बैठे खाना भी मिल रहा है और ऑनलाइन पढ़ाई भी हो रही। दिस इज व्हाट इज कंफर्ट जोन। सो कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलो, फोकस रखो, कंसंट्रेटेड एफर्ट्स करो। मेरा पॉसिबल, आई मीन हर जगह ये जरूरी थोड़ी कि वही मिशन मिलेगा। चलिए वो नहीं मिला तो उससे अच्छा मिलेगा, बिल्कुल। या साइड में कोई और दरवाजा खुल जाएगा, ये नहीं खुला तो, बट आपको दरवाजा खुलेगा। खुलेगा मेरी ठीक, दैट इज व्हाट आई वांटेड टू से। वैसे तो मैंने बहुत कुछ चीजें बोल दी है, बट इफ देयर इज एनीबडी हु इज कीन टू टॉक टू मी इन पर्सन 6:30 to 7:30 every day, I am available here and they can speak to me on telephone or personally they can visit. बिल्कुल बिल्कुल सर। सर हम कमेंट बॉक्स में बता भी देंगे बच्चों को। वैसे तो हम क्या देंगे सर। बताइए आप। सर आप तो हमारे भी मेंटोर हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मैं बहुत दिनों से इनको बोल रहा हूँ कि मैं आपके इंस्टीट्यूट आऊँगा, बड़ा नाम सुना है और काफ़ी लोग पुलिस में और सेना में उसमें जा रहे हैं। और ही वाज टेलिंग मी सर गिव अ टॉक देयर, तो मैं आऊँगा। लेकिन मेरा कुछ ऐसा हो जाता है, कमिटमेंट इतने ज़्यादा हैं, यो विजयनगर आना जो है इट बिकम्स स्लाइटली ट्रिकी फॉर मी एंड ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो गया है। बट अगेन आई विल से थैंक यू वेरी मच। इट्स ऑलमोस्ट 1 hour प्लस यू हैव कम ऑन द वे। टाइम पता नहीं चला, मुझे नहीं लगा। ऑलमोस्ट आप इतनी दूर से आए और मुझे भी अच्छा लगा और कुछ बातचीत हो। बिल्कुल सर, थैंक यू वेरी मच सर, है ना। बाय बाय, गुड डे, बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच एंड जय हिंद मैडम। और सर झाला सर की तरफ से भी आपको बहुत Yes. सर। सर जब भी स्टूडेंट्स आए, मतलब हम चाहेंगे कि प्रॉपर गाइडेंस मिले इनको। एब्सोल्युटली, आप इतना कर सकते हैं क्योंकि ये मेरा 15 दिन का जो ब्रेक होता है बिटवीन द कोर्सेज, ड्यूरिंग दैट पीरियड आई एम अवेलेबल, तो यू कैन प्लान माय विजिट। आई विल कम एंड डिलीवर ए टॉक। आई मीन ये जो एसएसबी का है, मैंने बड़ा मोटा मोटा खबर किया है। मैं 1.5 घंटे 2 घंटे में ऐसा सभा करके जाऊंगा उनको समझा के कि इनको समझ में आए। सर अभी तो न्यू एडमिशंस न्यू आए के कब हम लोग कुछ प्लानिंग कर बिल्कुल, सर। सो थैंक यू वेरी मच सर। गुड डे।